بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو صحیح کرو، وعلیکم السلام۔ سین کو سیٹی بولو۔ کون بچے کو سیٹی دے کے سلا رہے تھے؟ آپ، ٹھیک ہے؟ جتنی بار آپ بول رہے تھے آپ کا ذکر دور رہے اپنے رب سے، وہ ابلیس کراتا ہے۔ اوکے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ سین، آج ہم سیٹی قرآن کے حروف 20/8 سے قرآن بنا ہے، 20/8 حروفوں سے ایک سین بسم اللہ۔ بچے کو جب لوری دیں گے لا الہ الا اللہ، وہ لوری بچوں کو نا، آج ہماری بات ہوگی بچے سے موت، بچپن سے موت تک، ٹھیک ہے؟ بچپن میں جو بچے ہیں ان بچوں سے لے کر میری اور ہم سب کی کل نفس ذائقۃ الموت کی تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ اجازت دیں گے؟ ڈریں گے نہیں موت سے؟ ہم میں سے کوئی نہیں موت کے بارے میں بات کریں گے تو مریں گے۔ کسی کا گھر کبھی موت کے بارے میں بولنے سے کروڑوں بار اس کے گھر میں موت نہیں آئے گی، اور یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے، ایک پل آگے بھی نہیں جائیں گے، ایک پل پیچھے بھی نہیں جائیں گے۔ تو اجازت دیتے ہیں؟ ڈرو گے نہیں ڈرو گے نا؟ انشاءاللہ یہ باتیں حقیقت ہے، حق ہیں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے ہم سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسا بچہ دنیا میں آتے ہی، آجا گڑیا ادھر آجا، گردن میں درد دے گا، آجا ادھر آجا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی بچے کو ہم لوری دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب بچہ بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کی بیاہ ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، سب ہوں گے، کافی عرصے تک رہیں گے، یہ ہماری پہچان ہوتی ہے۔ مگر حق جان کے یاد رکھو، ایک آیت کو یاد رکھو جو ہر رات کو ہم پڑھ کے سونا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میت جب مرتی ہے تو سورہ ملک 40 بار پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا ہے، 40 بار نہیں پڑھنا۔ ابلیس کا تخت ہے ہاتھ، پیروں میں انگلی ایسے نہیں کیا کرو، یوں کر کے پھر قرآن میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، پھر تھوک لگا کر قرآن میں ڈال دیتے ہیں۔ ابلیس سے بچو، ان چیزوں سے بچ جاؤ الحمدللہ، تاکہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو، سورہ ملک روز رات کو پڑھتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اس کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں کہتے ہیں گدھوں کے جیسے کتابوں کو لادے ہوئے ہیں۔ قرآن کو ہم نے گدھوں کے جیسا اٹھایا ہوا ہے، اس میں کا ایک معنی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سمجھانے کے لیے تیار نہیں۔ جب میں سمجھاتی ہوں، جب میں یہ باتیں کہتی ہوں، مجھے لوگ پوچھتے ہیں کیا تم اہل حدیث ہو؟ میں تم سے پوچھتی ہوں کیا تمہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث تھے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتی تھے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے؟ کیا صحابہ الگ تھے؟ کیا تمہارا قرآن چار لوگوں کے لیے الگ الگ پرنٹ کیا گیا ہے؟ موت برحق، زندگی برحق، حق، جنت حق، دوزخ حق۔ یہ تہجد میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، سب سچ ہے، محمد سچ ہے، حق کا مطلب سچ، حق آ گیا۔ موت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق ہے، موت آ گئی۔ اب آیتیں بتاؤں گی، آپ خود قرآن میں کھولیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم کیا سمجھ کے رکھے ہیں زندگی کو؟ ہاں، سجے سورے پینے مزے، ایسے ہی رہ جائیں گے، یہاں رہیں گے۔ مجھے پوچھو اگر حقیقت معلوم ہوگی تو اب یوں جانے دل کرے گا، جب ہم رو رہے ہیں نا، ابھی میں بھی رو رہی ہوں، اب بھی رو رہے ہیں جانے کے لیے۔
مگر ایک دن آئے گا ہمارا دل کرے گا ہم خود جانے کے لیے تیار ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ آیت سمجھ میں آیا؟ الذی جو خلق الموت پیدا کیا موتا کو, والحیات زندگی کو اللہ نے پیدا کیا ہے. دو چیزیں ہمارے لیے حق ہے, جیسے صبح اور شام ہے, جیسے زمین اور آسمان ہے, جیسے میاں اور بیوی ہیں, جیسے ماں اور باپ ہے, جیسے شہنشاہ اور غلام ہے. ہر چیز کا جوڑا ہے, یہ بھی ایک جوڑا ہے, یہ بھی ایک جوڑا ہے. موت اور حیات ایک جوڑا ہے. بچپن میں ہم اپنے بچوں کو سکھا دیے موت اور زندگی تیرے لیے جوڑا ہے, ایک دن بیٹا تمہیں مرنا. آج بھی فجر کو میں بچے کو موت کو یاد کرا کے اٹھاتی ہوں. مرے گا نہیں وہ جب تک موت نہیں آئے گی. موت کو یاد کرنے سے ثواب ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, اجر و ثواب ملتا ہے. موت کو یاد کرنے سے, اب فار ایگزامپل آپ کے گھر میں یہ واچ اچھی ہے, اوکے, یہ واچ اچھی ہے, میں دیکھوں گی میرا دل بولے گا ارے کیا پیاری واچ ہے, مجھے بھی بڑی اچھی ہے, مجھے بھی پسند ہے, مجھے بھی لینا ہے. فار ایگزامپل آپ کی مہندی اگر میں دیکھوں گی یا آپ کی ہنگوٹی دیکھوں گی, ہم عورتیں ہیں نا ذرا دل کے کمزور ہیں, کبھی دل آ جاتا ہے کہ وہ چاہیے وہ چاہیے. جب موت کو بار بار یاد کریں گے بولیں گے یہ چھوڑ جانا جی, یہ چھوڑ جانا جی. کسی کا میاں بڑا اچھا ہوگا, بڑا پیار کرتا ہوگا, کسی کا نہیں کرتا ہوگا, ارے کتنا پیار کر رہا ہے, میں تو کہتی چھوڑو وہاں بھی کتنا اچھا ہے, ہمیشہ کا ساتھ ہے, ہمیشہ کا ساتھی ہے. چھوڑو جو ملا ہے شکر اللہ کا, شکر کر لو, صبر کر لو, دو چیز کر لو. موت و حیات ایک جوڑا ہے, اس کو مانو, یہ حق ہے, یہ برحق ہے, یہ برحق ہے. اب میں جہاں بھی جاتی ہوں ایک ہی بات یاد رکھنا, آپ قیامت میں جو بھی اگر بنائیں گے فرقے اپنے آپ سے, آپ خود اپنے رب کو جواب دیں گے. قیامت کے دن جہنم میں ڈالیں گے, عذاب میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کہتے فرقے نہ بناؤ, بالکل نہ بناؤ, نہ حساب دو گے. اب کیسے کہہ سکتے ہو فلاں ایسے کیا, جب خود کسی میں نہیں ہے تو تم کیوں ڈیلتے ہو؟ ابے بیت المال میں اتنا سارا لمبا بیان کری میں, اتنے گھنٹے لمبے, میں نے کون کون تھے وہاں پہ بیت المال میں؟ آپ بھی تھے, آپ بھی تھے, آپ بھی تھے, آپ بھی تھے, ماشاءاللہ اتنے سارے تھے ماشاءاللہ. سارا بیان ہونے کے بعد ایک پیاری بہن آ کے مجھے پوچھتی ہیں تمہاری بھی کتاب سیم ہے, ہماری بھی کتاب سیم ہے, میں اہل حدیث ہوں, تم کون ہو؟ اب مجھے جواب دو. اتنے گھنٹے میں سمجھائی ہوں, قرآن کریم کو ماننے والا کوئی فرقہ نہیں رکھتا, قرآن کریم کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والا کوئی فرقہ نہیں بناتا. اگر قرآن کریم کو چھوڑ کر باقی کتابیں 11 مجالس, 12 مجالس, سر شہادت, فضائل اعمال, بنات وغیرہ کیا کیا کیے ہیں نا, ان سب کو ماننے والے پوچھیں گے فلاں فلاں فلاں. میں جیسے قرآن اٹھاتی ہوں لوگ کہتے ہیں ہاں تم اہل حدیث ہو. اتنا دل جلتا ہے, قرآن کریم کے ٹکڑے تم بنا رہے ہو. اللہ تعالیٰ قبر کے اندر سے نا اندھے اٹھائیں گے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. قرآن کو چھوڑ دیا ہے نا, قرآن کو چھوڑ دیا, اس کی بات کو نہیں لے رہے. قرآن کہتا ہے فرقے نہ بناؤ, تم ایک ہو جاؤ. موت و حیات ایک جوڑا ہے ہمارا, یہ برحق ہے, سب کو جانا ہے, سب کو جانا ہے بول کر اگر ہمارے دل میں صبح و شام یاد کرتے رہیں گے, ہمارا دل کرے گا ہیرے کا سیٹ پہننا. آج عورتوں کو میں چند ایسا سبق سکھانا چاہتی ہوں تاکہ ہم موت کو یاد رکھیں. موت کو یاد کریں گے تو یہ ساری چیزیں حقیر دکھیں گی, یہ ساری چیزیں حقیر دکھیں گی, بے معنی دکھیں گی. زندگی کیسے دکھے گی؟ سب ختم ہو گئی ہے. نہیں, ایسا لگے گا میری زندگی وہاں اچھی ہے. موت کس کو چھوڑیے, بچے کو نہ چھوڑیے, نہ جوان کو چھوڑیے, نہ بوڑھے کو چھوڑیے. پہلے آیت ختم کرتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, اس کا مطلب ایوکم, آپ کوئی نہیں بولیں گے, ایوکم ایوکم فبأئی آلاء, فبأئی آلاء, سب کو معلوم ہے نا یہ, فبأئی آلاء ربکما تکذبان. ایوکم, کون ہے تم میں سے جو سب سے اچھے اعمال کرے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں مجھے اور آپ کو, کیا جواب دیں گے؟ بزی ہوں اللہ تعالیٰ,
شوہر ہے میرا اللہ تعالیٰ فجر کو اٹھ نہیں سکتی، میرے شوہر ہے، میں نئی نئی شادی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد بچہ ہو گیا، جچہ بن گئی، جچہ ہوں اللہ، بچہ ہو گیا، پھر اس کے بعد بچے اسکول کو جانا اللہ ہوتا نہیں، ٹائم نہیں، ٹیوشن کو بھیجنا اللہ تعالیٰ ہوتا نہیں، بچے بڑے شادی کرنا اللہ تعالیٰ، شادی ہو گئی، سب بہانے، قیامت میں دیکھو کیا نکلے گا حساب. سب کام کے ساتھ، سب زندگی کے ساتھ اپنی عبادت کر لو. نماز پڑھ کے اٹھو، کچن میں پکاتے پکاتے قرآن ڈال کر پڑھتے رہو، سنتے رہو، زبان سے پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو. 4 باتیں کسی سے کرو، ذکر کرو. ابھی بھی منہ خالی ہیں آپ کے چند لوگوں کے. زبان ہونٹ ہلنا، ہونٹ نہیں ہلیں گے تو اندر شیطان گھسے گا. کہاں سے گھستا ہے شیطان؟ کہاں سے گھستا ہے؟ بولو 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 بولو، کوشش کرو نا. میں بھی کہاں سے سیکھی؟ قرآن و سنت سے سیکھی. ہم بولیں گے تو ہم نہ جذبہ آئے گا، ہم سیکھیں گے کچھ. بولو کہاں سے؟ ناک سے. ناک تو کھلی ہے، کبھی بھی جا سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے. کیسے کب؟ یہاں بھی گھستا ہے، کان میں بھی پیشاب کرتا ہے. باتھ روم میں نہیں بات کرنا، باتھ روم میں گانے نہیں گانا، باتھ روم میں کپڑے دھوتے دھوتے باتیں نہیں کرنا. کچھ کرتے کرتے ذرا اوائڈ کر لو، گھس جائے گا اندر. گھس کے نکلے گا کہاں؟ شرمگاہوں سے. اسی لیے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو ڈھونڈتی ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو ڈھونڈتا ہے، کیونکہ شرمگاہ تک پہنچو گئی اس کی. قرآن کیا کہتا ہے سمجھ کے دیکھ لو تو بہت آسان ہے. ذکر کرو تو نہیں ہوگا، ذکر کرتے ہی بھاگ جاتا ہے. ذکر میں رہو، اٹیک نہیں کرے گا. ذکر میں رہو، آپ کو تکلیف نہیں دے گا. ذکر کرو، آپ کو کوئی پرابلم نہیں پہنچے گا. ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. ذکر الہی میں رہ جاؤ. نہیں اب ہونے دو، دے دو. نہیں نہیں، بیان کر رہی ہوں میں. بسم اللہ. تو قرآن کریم نے ہم نے کہہ دیا موت و حیات ہم جان لیں، جان کے رہیں. بچے کو بھی موت ہے، جوان کو بھی موت ہے، بوڑھے کو بھی موت ہے، لنگڑے کو بھی موت ہے، کالے کو بھی موت ہے، گورے کو بھی موت ہے، موٹے کو بھی موت ہے، پتلے کو بھی موت ہے، غریب کو بھی موت ہے، امیر کو بھی موت ہے، بادشاہ کو بھی موت ہے. ہر ایک موت کی بات آ رہی. چائے ہٹا دو، لذت ہٹا دو، یہ لذت ہٹا دو. ابھی بات ہو رہی ہے لذت. چکنا ہے، چکنا ہے، ہم سب کو چکنا ہے. مجھے بھی چکنا ہے. یہ بیان میرا رہ جائے گا، ایک دن میں بھی چلی جاؤں گی. مجھے بھی چکنا ہے. دیکھو ابلیس کیا کیا، چائے لا کے دیا، چک، میٹھا چک، دنیا کی مٹھاس چک. نہیں، اللہ کی باتوں کے ٹائم پہ کوئی کھانا پینا نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے. ذکر الہی میں خوف سے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، پر بچھا کے آسمان سے نوری فرشتے اللہ کے آسمان سے، ساتوں آسمان کے اوپر سے نکل کر آتے ہیں جہاں پہ قرآن کریم ہوتا ہے. اب بتاؤ کون سے اہل حدیث میں، سنی جماعتی میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن و حدیث میں لکھا ہے. قرآن و حدیث میں باتیں لکھی ہیں. تو ہر کسی کو موت ہے. ٹوائلٹ میں رہو چھوڑے گی نہیں، مسجد میں رہو چھوڑے گی نہیں. یہ بات دل میں رکھ لو، خوف لے کے آؤ دلوں میں کہ ہمارا کون سا پل بتایا نہیں گیا ہے، یا بچپن ہے یا جوانی ہے اور بڑھاپا ہے، بتایا نہیں گیا ہے. لکھ دیا ہے، مان لو. اگر نہیں مانو گے تو کافر کہلائیں گے. شوہر چلا گیا، الحمدللہ علی کل حال. آج پڑھیں آپ، میں پڑھاتی ہوں. الحمدللہ علی کل حال، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جو مصیبتیں سہ رہی ہوں اس کا بھی مجھے اجر دے دے تو میرے مولا. یقین مانو، آنسو نہیں بہانا، دکھ نہیں کرنا. چلا گیا، آپ کو تکلیف ہوگی 40 دن تک، بہت یادیں آئیں گی. شادی کی رات سے اب تک کا بہت ہوگی. اس گھر میں 2 موتا ہوئے، اللہ صبر دیں، صبر دیں، اللہ صبر دیں. صبر کے ساتھ آپ کی دنیا میں بہتر شوہر عطا فرمائیں. آئندہ حق میں بہتر ہے تو دوسرا شوہر عافیت کے ساتھ عطا فرمائیں. اگر حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ جنت میں عطا فرمائیں. اللہ کے فیصلے عافیت کے مانگو، عافیت کے مانگو، عافیت کے فیصلے مانگو. میری زندگی
زندگی کب تک ہے؟ میں خود علم جان کر بھی میں وہ علم کوئی نہیں جان سکتا. کوئی عالم، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی قلندر، کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کون کس کو جانا ہے. آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں سے چلے گئے. اس لیے آج یہ پیاری بہنا نے ایک آڈیو بھیجی مجھے، حالانکہ میں نے پوچھی تھی دعوت سب کو بولوں کیا جگہ ہوتی ہے کیا آپ کے ہال میں، تو بولے نہیں اتنی جگہ نہیں ہوتی، ہمارے ہی ہیں. بولے ٹھیک ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا اس کو لے کے آ جانا، وہ بہن کو لے کے آ جانا ساتھ، آپ کو ان کو ایڈریس معلوم ہے. بولے ٹھیک ہے الحمدللہ. فون آیا، بولی آپ آ جاؤ. نہیں نہ کسی کو نہیں بولا، آپ آ جاؤ. کیا بولا تھا انہوں نے؟ کیسے کیسے چھوڑ گئے ہیں دنیا. کیا ہے الفاظ وہ؟ کیا ہے الفاظ وہ جو آڈیو بھیجے تھے مجھے ویڈیو؟ کیا الفاظ تھے؟ دنیا ایک ہمارے لیے عبرت گاہ ہے. اس کو مزیدار بنا لیا ہم لوگوں نے، بہت مزیدار بنا لیے ہیں، بڑے خوشنما. میں نے بھی، آپ نے بھی ہمارے گھروں کو بڑے محلات بنا کے رکھ لیے ہیں. ہم نے جو بھول گئے ہیں، مگر بن گئے گھر، اچھے بن گئے محل ہیں. چلو بچوں کے لیے رہ جائیں گے ہم، چند عرصے کے بعد ہم جائیں گے، پھر وہ بھی آ جائیں گے، سب آئیں گے. ایک بات یاد رکھنا، رونا نہیں. ہماری جدائی وقت تک ہے، اس کے بعد ملیں گے جا کر. اگر وہ نماز پڑھتے تھے وقتاً، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ آپ زور سے بولو. پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ آپ پڑھتے ہو؟ کبھی اب پڑھ رہی. اب پڑھ رہے ہو. ابھی وقت آپ کو دے دیا، آپ کے شوہر کو نہیں دیا اللہ نے. آپ کے شوہر کی امی کون ہے؟ وقت نہیں دیا ان کو. آپ پڑھتی ہیں 5 وقت؟ بچے کو کیوں نہیں پڑھایا آپ نے؟ نہیں سنتے تھے. بہت بولے آپ نے، بہت بولا آپ نے. شرک کرتے تھے، لا الہ پہ تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلہ کرنے والی کیا تھے نہیں تھے. آپ کو مہلت مل گئی ہے، آپ عبادت کر کے ان کے بچوں کو تیار کرو. جب بچہ مکتب کو جائے گا، بسم اللہ جب بولے گا، باپ کو خبر کے عذاب سے نکالیں گے. ہمارے پاس چابیاں ہیں، ہمارے پاس چابیاں ہیں ان کو پہنچانے کی. یہ نہیں کہ پڑھ کے 10واں کرے، 3واں کرے، 20واں کرے، 40واں کرے. یہ نہیں ہے کہ بس آپ وہ بچوں کو ذکر کراؤ. آپ پڑھیں گے تو نہیں پہنچے گا، آپ کے بچے پڑھیں گے تو ان کو جائے گا. آپ کو مہلت مل گئی ہے، آپ کے شوہر کو مہلت نہیں ملی تھی. ابھی بھی وقت ہے. 5 وقت آپ پکڑ لو نماز، ہر حال میں پکڑ لو. اگر آپ کو مہلت چھوڑ گئی پچھتاؤ گے. دیکھو چلو آیت میں ہوتا ہے سورہ مومنین میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جب موت دی جاتی ہے تو جب مار کے کیا کرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کو تھپڑ تھپڑ مار مار کے، پیٹ کے اوپر گھوسے مار مار کے روح کو نکالا جائے گا. کیسی بڑی بات ہے، کتنی ذلیل بات ہے، کتنی ذلت کی بات ہے. تھپڑے مار مار کے، پیٹ میں گھوسے مار مار کے نکالیں گے بدکار روح کو جو اللہ کے ساتھ. آپ ہٹ کے آ جاؤ، وہ ادھر آ جائیں گے. آپ آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے. موت 2 طرح سے. دیکھو روحوں کی بات بولتے میں آگے چلوں گی. الحمدللہ روح آنے والی دنیا میں وہ روح ہے. روح 2 طرح کے ہیں. ایک روح ہمارے اندر ہے، 2 مرحلے ہیں. ایک ہمارے اندر روحیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اندر روحیں ہیں، ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے تو مردہ ہے. بولو نا، روح نہیں تو مردہ ہے. روح نکل گئی، مردہ ہے. میت کو دیکھو، فلاں بچے کو دیکھو، نہیں بولتا کوئی. چھین لیتے ہیں سب کچھ اختیارات، گھر چھین لیتے ہیں، جسم کو سے پورے کپڑے چھین لیتے ہیں. پیٹ میں دبا دبا کے پیخانہ کبھی منہ سے نکلے گا، کبھی پیخانے سے نکلے گا. چھین لیتے ہیں پیٹ میں کا بھی، پیٹ میں کا بھی چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لیتے ہیں. ننگا رہتا ہے انسان، کفن میں لپیٹ کے ڈال دیتے ہیں. کچھ بھی نہیں، چھین لیتے ہیں. یہ مہلت ملی مجھے اور آپ کو، یہ مہلت ملی ہے. نہ سکرات کی آنے سے پہلے، سکرات آنے سے پہلے معافی مانگ کے سیدھے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اس کے ساتھ شریک نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی اپنا لو. 5 وقت کی نماز کر لو، پردہ کرو، صبرو، مگر غیر مردوں کے سامنے نہ صبرو. صبرو، سجاؤ اپنے آپ کو.
मगर अपने अंदर सवारो, अंदर सजा के, घरों को सजा के रखो, शौहरों को सजा के रहो, अपने आप को सजा के रहो। अल्लाह ने एक हुजरा दिया हुआ है ना, एक हुजरा दिया है ना, हमारे लिए घर दिए हुए हैं ना। ये बाहर किस लिए? बाहर अल्लाह ने कहते तवाइफ मर्द जो सजेंगे सवरेंगे, दूसरों को दिखाएंगे। मैं भी थी, आप भी थे, मैंने भी छोड़ी, आप भी छोड़े। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह हम सबको छुड़वा दे। जो अभी भी जो नहीं छोड़े हैं उनका अल्लाह ताला छुड़वा दे। मोहलत नहीं मिलेगी, एक की मौत देकर हम खुश हो जाती। अगर वो दुश्मन रहेगा, अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ वो मर गई, वो तो पाक हो गए गुनाहों से। हम अभी भी गुनाहों में हैं। हम अपने आप को देखें, इबरत पकड़े, हमें वापस जाना है, हम अपने आप को सही कर लें, अपने आप को सही कर लें। तो ये मरहला जो रूहें, जब बच्चा पैदा हुआ, कहाँ आपके गोदों में बच्चे थे ना यहाँ पे, माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, अल्लाह उनके नसीबे बुलंद करे, सबके, आपके, मेरे, हम सबको अल्लाह ताला मोहलत दे, अल्लाह ताला राजी हो जाए, अल्लाह ताला राजी हो जाए, अल्लाह ताला राजी हो जाए। तो ये हमारी रूहें जाएंगी तो वहां पे लीन में पहुंचेंगी, वहां से रूहें आएंगी, बच्चों के जिस्म में होकर आएंगी, एक वक्त तक रहेंगे और चले जाएंगी। मौत जगह बदलने का नाम है, जगह बदलने का नाम है। रूह अपनी जगह चली जाती है, रूह जहां से आई है वहां चली जाती है। रूह दोबारा एक बर्तन खाना, 3 गोश्त के टुकड़े लेने के लिए नहीं आती है। बर्तन निकालते हैं ना रोज मैयत के टाइम पे, रोटी भी पानी, रोटी की मोहताज नहीं है जिस्म नहीं तो रूह कहाँ खाती है? अक्लमंदों, अक्ल रखते हो? जिस्म खाना खाता है, रूह जिक्र खाती है। और जब मैयत जो मर गई, वो मैयत के लिए रोटी दो। मेरे बचपन में देखी थी मैं, धुंधली सी यादें हैं अब्बू की, मुझे धुंधली सी यादें हैं। एक पानी रखते थे, हमें बच्चों को देते थे, वो झाड़ को पानी डाल के आओ। उसी क्यों झाड़ को डालना? अब्बू आएंगे पिएंगे। अच्छा, वो रोटी बना के रखते थे। जिस्म खाना खाता है तो पैखाना भी होता है, हाँ या ना? जरा साथ देना, मेरा गला साथ नहीं है। हाँ ना, पैखाना होता है ना? रूह को पैखाना होता है, रूह को पैखाना पेशाब होता है, रूह को खया आता है, रूह को महवारी आती है, रूह को बच्चा होता है, रूह हम बिस्तरी करती है। कैसे लोग हैं कि रूह आती है, रहती है, करती है। क्या करती है रूह? रूह अल्लाह का अमर है। पूरे कुरान करीम में एक ही जगह पे आती है बात, रूह अल्लाह का अमर है। यसअलूनका अनि रूह, पूछो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे अल्लाह से पूछो कि रूह के बारे में क्या है। अल्लाह ताला कहते हैं अम्र अल्लाह, हुक्म, ऑर्डर। अल्लाह के ऑर्डर्स को नहीं मानोगे, ये रूह जाके क्या करेगी हमारे लिए? बख्शिश का। अब देखो, आप सब मुझे ईमानदारी से बताना, जो बैतुल माल में आप प्यारी बहनें आ रही हैं, आप में तब्दीली आ रही है जब से मैं आ रही हूँ? आ रही है? क्या तब्दीली आई बताएंगे? कुछ तो बताएंगे, मेहरबानी होगी। ईमान के साथ रहना। और रूह को ग़िज़ा मिल रही है, यानी कि ईमान का लेवल बढ़ रहा है। लेवल, गलतियां सही कर रही, सुन रही मगर सही कर रही। माशाअल्लाह, कोशिश इन्ना सायाकुम लशत्ता, तो मुख्तलिफ कोशिशें हमारी जारी हैं, कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं तुम जन्नत को जाने वाले किसी के भी अमाल नहीं होते, तुम लोग अमाल के हिसाब से जन्नत को नहीं जाओगे। अल्लाह रहम करेगा, देखता है कैसे कोशिशें करते हैं। पता है मेरा गला आज बयान करने के काबिल का नहीं है, मेरी तकलीफ है अंदर, मगर ये मौत की बात है। जो बयान में करने जाती हूँ ना, वो हालात में अल्लाह मुझे डालता है। सकरात में कैसी हालत होती है, मेरे अंदर से खींच रहा है तकलीफ। सकरात कैसी होगी? एक सहाबा को पूछे सकरात कैसी होती है, क्या महसूस कर रहे हो? अब मैं बोलती हूँ तो आपको महसूस नहीं होगा ना, जब मरेंगे तभी पता चलेगा ना। कहते हैं पेट के अंदर कोई लोहा डाल के मुड़ोड़ रहे हैं, पेट के अंदर
पूरा खींच खींच के नसों में से कोई खींच रहा है, ऐसे है कि पेट में आग लग गई है, पूरे नसों के अंदर से ठोस ठोस की खींच के कोई निकाल रहा है। वो क्या है? रूह को ढूंढते हैं। कहाँ लिखा है रूह? अब मेरी क्लास के कोई नहीं बोलेंगे। रूह को कहाँ ढूंढते हैं? कहाँ लिखा है कुरान करीम में? रूह को ढूंढने के लिए कहाँ है? सूरह नाजियात 30वां पारा जाके खोलो आप, 30वें पारे को खोलो, 30 पारा को खोलो, 30वें पारे को खोलो, खोल के देखो, उसमें कहते हैं अल्लाह ताला वन्नाजियाति गरक़ा, बुरी रूह को पकड़ के खींच के कांटों के ऊपर नरम जो मल का कपड़ा डाल के खींचे तो जैसे फटता है वैसे तुमको फाड़ के निकालेंगे। मेरी और आपकी रूह एक तो निकलना है एक दिन, बरहक है जाना। अल्लाह मौत से पहले हमें माफी मांगने वाला बना दे, मौत से पहले गुनाहों की माफी मांगने वाला बना दे, तेरा मुकर्रब बंदा बना दे, तेरे जिक्र में, तेरे अस्कार में, तेरे सजदे में, तेरे घर में, तेरे महबूब के सामने हमारी रूह तो निकाल ले अल्लाह। अब हमें मोहलत हम सबको दे दे, हम सबको लंबी मोहलत तो दे दे। फिर उसके बाद कहते हैं वन्नाज़ियाति ग़रक़ा वन्नाशिताति नशता। किसी को ऐसा ना घाट जो खोलते हैं नरमी से, बारीक से। माँ को कोई दूध पिला रही थी माँ यहाँ पे, जैसा दूध छोड़ता है बच्चा नरमी से, माँ को मालूम होता भी नहीं है बच्चा कब दूध छोड़ दिया। माएँ, तुम छोटे बच्चों की माएँ हो, तुम गवाह हो। बच्चा जब दूध छोड़ता है तुम्हें मालूम होता है? नरमी से छोड़ता है ना, मालूम ही नहीं होता ना। ऐसे ही हमारी रूह निकाली जाएगी, हमें मालूम भी नहीं होगा कि इसी नरमी से निकाल दिया जाएगा, हमें खबर भी नहीं होगी। मौत का बयान करना है बोल के कल से मेरी तबीयत खराब हो गई है, मौत से डरती नहीं हूँ मगर तकलीफ होती है क्योंकि हमने बहुत गुनाह किया, शिर्क किए, बिदात किए, फैशन किए, सब घूमे फिरे, सब दुनिया का करे। अल्लाह ताला हम सबको माफ कर दे, माफ कर दे, तेरी रहमत के सदके तू माफ कर दे। अल्लाह हम सबको बख्श दे, मोहलत के साथ, ईमान के साथ रख, ईमान के साथ बिल खैर बिल ईमान तू उठा हम सबको। मौत किसी की होती है, कोई रोता रहता है, उधर कोई हंसते हैं, बातें करते हुए हंसते हैं, हंसी मजाक पिकनिक की बातें होते हैं, कहाँ जाएंगे, वहां जा कोएंगे क्या, घूमने जाएंगे क्या। तुमको मौत नहीं है, तुम नहीं मरोगे। कोई मर गया, कोई रो रहा है, उसके घर में 3 दिन चूल्हा नहीं सिलगाने दो, उसको खाना पानी मुहैया करो, उसे जरूरत करो, उसे सबर की तलकीन दो। किसी का बेटा लुटा, किसी की बीवी लुटी, किसी का शौहर लुटा, किसी का कुछ लुटा हुआ है। मलकल मौत कहते हैं दरवाजा पकड़ के जब रोते बिलखते देखते हैं तो कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे रब के हुक्म से मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे रब के हुक्म से किया। दुनिया में जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा गया मिट्टी लाने के लिए, इंसानों को बनाने के लिए, आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए आए तो मिट्टी ने कहा अल्लाह की कसम क्या वास्ते मिट्टी लेना चाहते हो? नहीं, बंदे बना रहे अल्लाह ताला, एक नायब बना रहे, आदम अलैहिस्सलाम को बना रहे, किसके लिए? इबादत के लिए। बाद में क्या होगा? जन्नत और दोज़ख होगी। तो नहीं, गुनाह करने वालों को मेरी मिट्टी नहीं लेकर जाओ, मेरी मिट्टी नहीं लेकर जाओ। अल्लाह की कसम दे दी, जिब्रील अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम आते हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम को यही वादे कसमें उनको मनाती है, वो भी चले जाते हैं। आखिर में तीनों फरिश्ते जो बारिश बरसाने वाले, जो सुर फूंकने वाले, जो नबियों को पैगाम लाने वाले, तीनों फरिश्तों को यही काम करती है। चौथे फरिश्ते मलकल मौत है। ये आते हैं तो बोलते हैं मैं तू मुझे नहीं मना, तेरी बातें में मुझे नहीं डाल, तुझे मैं तेरी आजारी देखूं कि मेरे रब का हुक्म देखूं, तेरा रोना धोना देखूं कि मेरे रब का हुक्म देखूं। तो फिर मिट्टी लेके जाते हैं, फिर आदम अलैहिस्सलाम को बनाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मलकुल मौत को, ऐ मलकुल मौत, सारों की रूह तुम्ही को निकालना है। उनकी बहादुरी से लेके आए ना, उसकी बात नहीं मान के, दूसरे फरिश्तों को ड्यूटी नहीं दी, इनकी दे दिए। कहते हैं अल्लाह सब मेरे से नफरत करेंगे ना, सब मेरे से नफरत करेंगे ना कि मौत निकालने वाला आ गया बोल के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। कोई मरता है तो आपने हर मैयत को देखा होगा, बचपन से कोई ना कोई एक मैयत को तो देखे होंगे, है ना? क्या कहते कैसा मर गए बा,
पहला सवाल किसी का, कोई भी औरत आती, मर्द आता, ईमान वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, हाजियां, ईमान वाले, हाफिज कुरान, आलिम दीन, बहुत चंद कम लोग होंगे। अल्लाह ने निकाल लिया, अमानत चली गई। 1% होंगे कोई लोग जो ऐसी बात करते होंगे। क्या पूछते हैं आकर, कैसा मर गए माँ, क्या होगा था माँ, बीमार थे। ये अल्फाज अल्लाह ने डाले हुए हैं। अगर वो बहुत हद तक पहुंचेगा ईमान पे तो बोलेगा अल्लाह ने उसकी अमानत ले लिया, आपकी अमानत ले लिए, आपकी अमानत ले लिए। आपकी अमानत आपके पेट में, जब आपका बेटा था, जब आपके पेट में डाला था, आपको नहीं मालूम था, आपने उसको खाना भी नहीं खिलाया, आपने उसको सांसें भी नहीं दिए, आपने हड्डियां भी नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाए, आप कुछ नहीं करे, पेट में 9 माह 10 दिन आपने इतना ही किया है, मैंने इतना ही किया, हम सब ने इतना ही किया है। हमारा हक इतना है, हम अल्लाह को कोसने लगते हैं, अल्लाह ताला को बुरा भला कहने लगते हैं, अल्लाह ताला को क्या क्या कहते हैं मौत होते ही, क्यों ले लिया, नहीं लेना था, क्यों ले लिया, नहीं लेना था, क्यों ले लिया, नहीं लेना था, चिल्लाती रहती बीवी, माए, बच्चे सब चिल्लाते हैं। उसका माल है, उसने हड्डियां बनाए हैं, तुमको नहीं मालूम था वो बनाने वाली रूह थी। अल्लाह ने रूहों को जमा करने के तब सब रूहों को बना दिए थे, आपको नहीं मालूम था वो रूह आने वाली थी। आपका हक नहीं है, आपके मेरे इख्तियारात नहीं है, ये हम मेहमान हैं, हर चीज के मेहमान हैं, हमारी जान से, माल से, शौहर से, बच्चों से, हर चीज के मेहमान हैं। इसलिए ईमान वाले होंगे तो कुछ भी चीज गुम गई या हट गई, मार लग गया तो बोलेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम बोलते हैं? नहीं बोलते, बहुत कम लोग बोलते हैं। कुछ भी हो गया हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि। शौहर कभी डांटते हैं, आज मैं खुल के बताती हूँ ताकि आप भी समझो। हाँ मैं मर जाऊंगा, मर जाता हूँ, छोड़, नहीं नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारने भी कभी आ गए, क्यों पढ़ती हो तुम? कुरान कहता है मैं पढ़ूंगी, कुरान कहता है मैं पढ़ूंगी, कुरान कहता है मैं बोलूंगी, कुछ भी बात पे इन्ना लिल्लाहि। आज खुद खामोश है, हर मुसीबत टल गई, हर बीमारी हट गई, सारा अच्छे हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसीबत टलने के लिए कुरान करीम कहता है अगर तुम पे कोई मुसीबत आ जाए तो इसको बोलो ये लफ्ज कि अल्लाह मैं तेरी अमानत हूँ, अल्लाह मुझे तेरे पास लौट कर आना है। ये नहीं बोले अभी आ जाती हूँ अल्लाह, मैं आ जाती हूँ, तू ले ले अल्लाह, मैं आ रही हूँ अल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। माना नहीं समझ के हम लोग ऐसे कर रहे हैं। क्या बोलोगे? तेरी अमानत है, तूने ले लिया, मुझे ठोकर लगी, ये लगना था तेरे हुक्म से, तेरी अमानत है, ये मार मुझे लगा, ये तेरी अमानत है, कुछ गुम हो गया, कोई दिल खराब हो गया, कोई दिल तोड़ के चला गया, कोई मार के चला गया, कोई गाली दे के चला गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी के घर में मौत से पहले, जो तकदीर से पहले, एक सेकंड आगे पीछे नहीं। कई लोग मौत के बारे में बात नहीं करते, घर में बयान भी नहीं रखते, इसलिए मैंने पूछी आप तैयार हो क्या? डरते हैं मौत से, हालांकि इबादत है उसको याद करना, उसको याद करना इबादत है, ठीक है। रूहों के बारे में चलें, पता चले दुनिया बनाने से पहले अल्लाह ताला ने सबके रूहों को बना दिए, जिस्मों को बनाए नहीं, रूहों को बना दिए। रूहों को बनाकर सबको जमा करे मैदान में। अल्लाह ताला ने अलस्तु बिरब्बिकुम, सूरह अल-आराफ लिख लो कोई, या बयान डाल के सुन लो। जो नए बहने हैं मैं पेपर देती हूँ, पेन देती हूँ, इंशाल्लाह नंबर्स लिख दो। आज जो बयान कर रही हूँ आपको आ जाएगा, सुन के नंबर्स लिख लो। सूरह अल-आराफ में 173 या 172 में आपको मिलेगा अलस्तु बिरब्बिकुम, बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारे रूहों को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक का जमा दिए, पूरे रूहों को जमा करके पूछे। अल्लाह ने पूरे रूहों को इकट्ठा किया हुआ है। और रूहें वहां पे जो मिलके रहती थी या दुनिया में मिलके रह रही हैं, जो रूहें वहां पे नहीं मिलती थी, लड़ लेती थी, यहाँ पे वही कर रहे हैं। रूहों का ताल्लुक है, रूहों का ताल्लुक है। रूह को पहचानो, रूह की रहने की एक जगह है। सूरह मुतफ्फिफीन में एक जगह लिखी गई है, इल्लीन कहा गया है, सिज्जीन कहा गया जहन्नुमी को रखने के लिए। वो बातों को छोड़कर नहीं माँ ऐसा, नहीं माँ वैसा, माँ हमारे बाप दादा बोले, तुम्हारे बाप दादा मेरे बाप दादा हकीर हैं अल्लाह के सामने।
اب یہ بولیں گے صحیح ہے یا رب العالمین جو قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو 20 پر 3 سال جو نازل ہوتا رہا وہ قرآن جھوٹا ہے، وہ قرآن کریم جھوٹا ہے؟ ہمیں کیا غلطی ہے؟ ہمیں عربی آتی نہیں تھی. ہم اتنا پیار کرتے ہیں. میں کہتی ہوں ہم انڈینس میں پاکستانی بھی میری بہنیں ہیں میری، وہ بھی اتنے پیار کرتے ہیں. سودانی ہیں وہ بھی بڑا پیار کرتی ہیں، مصری ہیں، کئی پورے عربی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، سب پیار کرتے ہیں. مگر ہم لوگوں کو علم کے بغیر پیار کرتے ہیں. علم نہیں ہے، قرآن کی بہت عزت کرتے ہیں، عزت کر کے بوسے دے کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اٹھا کے پڑھنے ٹائم نہیں ہے، اٹھانے ٹائم لگتا ہے، اٹھانے کے لیے وقت پورا موچ کے رکھو. موچ کے نہیں آیا تھا قرآن، ادب سے رکھو کافی ہے. لپیٹ کے پورے اٹھانے کے لیے 10 منٹ ویسٹ، پھر رکھنے کے لیے 5 منٹ ویسٹ. میں نے لپیٹ کے نہیں رکھا، ریکس میں نے رکھا ہوا ہے. حالانکہ میری شادی میں بڑا اچھا امی نے لپیٹ کے دیے تھے پورا صندوق کے ساتھ، وہ پورے لپٹا لپٹی میں نے نہیں رکھا ہے. میں نے بولا نہیں مجھے جلدی چاہیے، اٹھاتے پڑھتے. یہی سکھایا گیا، قرآن کریم اٹھاؤ پڑھو رکھو. اب اس کے اندر فرعون کا نام ہے، ہم بوسے دیتے ہیں فرعون کو بھی. نمرود کا نام ہے، نمرود کو بھی بوسے دیتے ہیں. ابو لہب کا نام ہے، ابو لہب کا سورہ مسد کو لے کر مسد کو ہی بوسے دیتے ہیں. عقل نہیں ہے ہمیں، سمجھ نہیں تھی ہمیں، علم نہیں تھا ہمیں. آج علم رب العالمین کے نام ہے. سجدے کر دو، سجدے میں گر جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، صلوات درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے. روحوں کو اللہ نے جمع کیا. کتنی زندگیاں ہمیں جینے ہیں، یہ ایک زندگی جی لی ہم نے. کون سی؟ کون سی؟ عالم ارواح، روحوں کی. اب میں نے بتائی نا سورہ الاعراف یاد ہے؟ الاعراف یاد ہے؟ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم تو نہیں معلوم بولا، معلوم تو معلوم بولا تاکہ میں یاد دلاؤں گی. الاعراف یعنی کہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی. نہ جنت کو جا سکیں گے نہ جہنم کو جا سکیں گے، بیچ میں کٹ جائیں گے. ادھر مڑ کے دیکھیں گے جہنمی کو جلتے ہوئے، ادھر مڑ کے دیکھیں گے جنتی کو بولیں گے ذرا پانی چھڑکو، جہنمیاں پکار رہے ہوں گے. یہ ساری باتیں قرآن کریم میں لکھی گئی ہیں. انشاءاللہ ایک بار ایک سورہ میں پڑھتی ہوں معنی سے تاکہ آپ لوگوں کو ملتے رہیں. ٹھیک ہے، پڑھ کے بھیجتی ہوں یا کہیں بیان کرتی ہوں، ایک سورہ معنی کرتی ہوں، معنی ایک سورے سے سمجھ آتی رہے گی. عالم ارواح میں جی لیے. ہم سب کہاں تھے؟ دوبارہ ریپیٹ کرو. عالم ارواح، روح کی جمع ارواح. بولو روح کی جمع ارواح، روح کی جمع ارواح. بولو روح کی جمع ارواح. ہم کہاں تھے سب پورے؟ عالم ارواح. کون کون؟ جو روحیں آنے والی ہیں، جو چلی گئی ہیں، جو موجود ہیں. ہم پورے تھے، ہم پورے تھے عالم ارواح. اب کون سی دنیا میں ہے؟ عالم دنیا. کون سی دنیا میں ہے؟ عالم دنیا. اور کتنی دنیا باقی ہے؟ نہیں معلوم. برزخ کی دنیا. الحمدللہ. اور کون سی؟ اتنا بولے شکریہ آپ کا. عالم برزخ کا مطلب ایک آڑ. آڑ کا مطلب کیا؟ ہمارا ان سے تعلق نہیں، ان سے ہمارا تعلق نہیں. یہ دیوار آڑ ہو گئی. بازو کے گھر والے تم کو دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. کوئی دیکھ سکتا ہے؟ خبر کے اندر کا کوئی نہیں جان سکتا، خبر والا نہیں سن سکتا، خبر والا نہیں سن سکتا، نہ ہم سنا سکتے. یہ قرآن کہتا ہے. ہم بولتے نہیں بابا جی سنتی، غوث پاک سنتی، خواجہ جی سنتی. قرآن بولتا ہے نہیں سنتے، ہمیں بولتی سنتا ہے. اب کون سچے؟ میں سچی یا قرآن سچا؟ قرآن کریم. بات مانو، درود و سلام بھیجو، ساری زندگی درود و سلام بھیجتے رہو، حق ادا ہوگا. جب وہ نہیں ہے، جنتوں میں ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو اجمیر میں ہے؟ اجمیر کیا جنت ہے؟ نہیں ہے. جنت کیسی ہے؟ سونے کے ہیں، یاقوت مرجان ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی جنتوں میں ہے. یہ بزرگان دین ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ انبیاء ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رزق میں ہیں. جنت کے رزقیں کھا رہے ہیں. جسم نہیں ہے، جسم دنیا میں ہے. ایک پرندے کی جوف میں ان کی روح کو ڈالیں گے، وہ پرندے میں اڑ اڑ کے پوری جنتوں کی سیر کریں گے.
وہ آ جائیں گے اجمیر میں, اما جان باوا جان آ جائیں گے چنتامنی میں. چنتامنی میں ہوتا بڑا ہے تو کل مسانتے بڑے ہیں. خواجہ غریب بولو ہماری غلطی نا, میں بھی اسی طریقے سے تھی, آپ بھی اسی طریقے سے تھے, صحیح کرنے میں غلطی نہیں ہے, ورنہ خبر میں ماریں گے مجھے اور آپ کو, ماریں گے مجھے اور آپ کو. درود و سلام. انہوں نے جتنی اللہ کی عبادت کی ویسی عبادت کریں گے تو جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے. اگر کوئی بزرگ سے آپ کو محبت ہے, آپ محبت کرو اللہ تعالیٰ سے, درود سلام ان کو بھیجتے رہو, مزاروں پہ نہیں جایا کرو. پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اگر محبت رکھتے ہیں اس بزرگ سے, اگر وہ جنتی ہیں تو آپ کو ان جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے. میری ایک خواہش ہے, ایک بزرگ سے بہت محبت کرتی ہوں, بہت زیادہ محبت کرتی ہوں, رات دن کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں, رات دن کوشش کرتی ہوں. بزرگ ہیں, سارے بزرگوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی ہستی کتنی بڑی ہے, ان کی جنت کتنی بڑی ہے, کتنی عالی شان ہے. ساری کائنات انہی کی, اللہ ان کے رب کی ہے. سب کچھ اللہ نے ان سے اتنی محبت کی ہے. سارے جب تک نام نہیں لیں گے جہنم میں چلے جائیں گے, درود نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. نبی کا نام آئے اور آپ صلوات نہ بھیجیں, اس کو محبت کہتے ہیں, اس کو محبت کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ناخن سے پپیاں دیتے تھے میں اور آپ, ہم بوسے دیتے تھے, اس میں شیطان پیخانہ کرتا ہے. ہمیں معلوم نہیں, معلوم تھا, معلوم تھا. بوسا کس کو دیتے تھے؟ شیطان کو. کون کرواتا تھا؟ شیطان. آج ہم کیا کریں؟ صلی اللہ کرو, صلی اللہ علیہ وسلم, پوری روح سے ادا ہوگا. اللہم, دماغ پورا وائبریشن میں آتا دیکھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اتنا نہیں بھیج سکتے؟ یا محمد, اب کیسے ڈلتے ہیں پتہ ہے؟ یا محمد گنو بھائی, 2 بار بولیے اللہ تعالیٰ میں, 2 بار بولیے. اوکے, یا محمد, یا محمد, یا محمد. عورتیں بھی مست, یا محمد, یا محمد, یا محمد, یا محمد, یا محمد, یا محمد, ایسے وجود میں آ جاتے ہیں. کون کر رہا ہے گستاخ؟ ہمارا ساتھ کے اندر کا جو جن ہے, دیکھو جلدی میں پڑھ لیتے, سب جلدی پڑھو, ہلاک نہ ہو جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علیہ وسلم. کو سائلنٹ کر کے دیو, ان کو نہیں آ رہا ہے, سائلنٹ کر دیو, پریشان ہو رہی ہیں وہ. میرا ہاتھ پیر کانپنے لگے, 10 بار نام لے لی کہ ہلاک نہ ہو جاتے سیکنڈ میں. یہ ڈر تھا پہلے, میں بھی قوالی ڈالتی تھی, ہوم تھیٹر پوری گلی سنو. نبی سے محبت تھی نا, عشق تھا نا, جھوٹا عشق. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا آپ کے؟ آیا؟ عالم ارواح, عالم دنیا, عالم برزخ, عالم آخرہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. سور پھونکنے کے بعد 40 سال تک کچھ نہیں ہوگا. اب 40واں جو منا رہے ہو نا, ذرا غور سے سننا. 40واں جو کر رہے ہو نا, ذرا غور سے سننا. 40 سال تک سور نہیں پھونکا جائے گا, ہماری کیا حالت ہوگی. 40واں کر کے اینٹ کے کھڑے نہیں ہو جانا, دیکھیں اتارنے والے, وہاں پہ کیا جواب دو گے؟ جب منع کیا اللہ تعالیٰ نے, امی کے میرے, میں نہیں گئی. 3واں آ جاؤ بیٹا, نہیں, میں اکیلی, سارا خاندان. 3واں کر رہا ہے, 10واں کر رہا ہے, 20واں کر رہا ہے, 40واں کر رہا ہے. تڑپ پڑی, ماں مری میرے پاس, میرے پاس ہاتھ ہے, سر پہ ہاتھ ہے, میں نماز پڑھ رہی ہوں, ان کی روح نکلی ہے, میرے گھر سے لے گئی, مگر میرا تڑپ ایسی ہو رہی ہے کہ اللہ میں چلی جاؤں. قدم اگر بڑھائی میری ماں کو ماریں گے. وہ دن میں نے یہ پوچھتی ہے آصفہ مجھے بار بار, بچی اتنا کیوں ڈرتی ہو تم؟ آپ کے سامنے ایک موت ہوئی ہے نا, آپ سب پورے ڈر جاؤ. یہ پوچھتی ہے, بار بار پوچھتی ہے, اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ اتنا کوئی ڈرتا نہیں ہے نا, اتنا کیوں؟ اللہ میں ڈرتی نہیں ہوں, حق ڈرنے والا مجھے بنا دے. ان کا گمان ہے یہ, میں سا ڈر نہیں رہی ہوں, مجھے سچ میں ڈرنے والا بنا دے. ہم سمجھتے نہیں ہیں, ماں کو ماریں گے. میرے دل میں کیا ہی بات, جیسے جنازہ اٹھائے ماں کا, آج کے بعد پروردگار میں کوئی غلطی نہیں کروں گی, میری امی کو نہیں مارنا, میری امی کو نہیں مارنا,
میری امی کو نہیں مارنا اللہ، انہوں نے مجھے نمازی بنائے، مجھے قرآن سکھایا، مجھے بہت مارتے تھے نماز کے لیے، ان کو کبھی نہیں مارنا، تو کبھی مارنا کو تو اللہ، تو کبھی نہیں مار ان کو، کبھی نہیں مار ان کو۔ کیسے ہو بچے تم لوگ، نمازیں نہیں پڑھتے ہو، پکڑ کے ماریں گے قبروں میں، ماں باپ کو ماریں گے آپ کے۔ توبہ کرو، ابھی بھی عمریں ہو گئی ہیں، ایج گزر گئی ہے، توبہ کر کے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ فرعون مرتے وقت توبہ کیا، معافی نہیں ملی اس کو، ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لو، کوئی غلطی نہیں کرو، مہلت ملی ہے ہم سب کو، تمہیں مجھے مہلت مل گئی ہے، یہ مہلت مل گئی ہے، اللہ تو بخش دے۔ اللہ اٹھے بیٹھے استغفار استغفار کیسے؟ توبہ توبہ کرتے رہے، لپسٹک ڈارک لگائے، لپ لائنر لگائے، پھر شادی میں چلے گئے، بال کھلے رکھے، پھر چلے گئے، توبہ توبہ توبہ، نماز میں تھپڑ ہے، وہاں کی تھپڑ ہے، یوں مارتے، گول گھمائے روٹی ادھر کی ادھر، پھر گئے، پھر فیشن۔ یہ توبہ کا مطلب ہے قسم کھا کے چھوڑنا، توبہ کا مطلب تھپڑے مارنا، روٹی پلٹانا نہیں ہے، روٹی پلٹا پر دوسری روٹی، تیسری روٹی نہیں ہے، ایک ہی روٹی ہے، توبہ کر لیے پھر دوبارہ نہیں کریں گے گناہ، توبہ نہیں کریں گے۔ ماں کیسے بچے کو پیٹ میں رکھی تھی، پیٹ میں کتنے 9 ماہ 10 دن، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے پیٹ میں جو کروٹ لیتا تھا بچہ، جب ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم میں فوراً میرے بعد اطاعت ماں کی کرو، ماں کی کرو۔ نماز نفل پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ کے ماں کو جواب دو، فرض نماز نہیں، سنت نماز نہیں، نفل نماز۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ماں اگر ہوتی، اگر مجھے پکارتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں فوراً نماز توڑ کے میں آ جاتا۔ در یتیم نا، در یتیم نا، ہم نے چند گزارے نا، جوانی تک، بڑی عمر تک، یعنی کہ ہمارے بچے بڑے اتنے ہونے تک بھی ماں رہی نا، تبھی گئی نا۔ باپ تو اتنی چھوٹی اتنی بچی تھی، میرے ابو چلے گئے، آئے گا جنازہ، آئیں گے، موت بدلتی ہے جگہ، کچھ نہیں، ہمیں جانا ہے، موت کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی لے کر کھرٹتے تھے زمین پہ، کسی کو دفنانے کے ٹائم پہ خبر تیار کرنے تک بیٹھے تھے، صحابہ سارے بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، پانی ایسا گرنے لگتا ہے، بولتے ہیں اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ کس کی تیاری کرو؟ کس کی تیاری کرو؟ خبر کی۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، مکہ بنا لیے، مدینہ بنا لیے، جھنڈے لیے، گول پھرے، یہ ہے دین؟ نہیں نہیں، میرے نبی کیا بول کے گئے؟ میں بھی کیا تھی، میں کیا علم جانتی تھی، دھیرے دھیرے علم آئے گا نا، اب 2-3 ویک سے سیکھ رہے ہیں، 2-3 مہینے سے جان رہے ہیں، کتنا سیکھ گئے؟ ایسے ہم دین جان کے، ایک جان کے اس کو صحیح کر لو، ایک چیز پڑھے سیکھے اس کو صحیح کر لو، پھر دوسرا سیکھو اس کو صحیح کر لو، اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ ہمارا دین وہیں پہ وہیں رہے گا، کتاب قرآن کریم یہیں پہ رہے گی، دنیا یہیں پہ رہے گی، ہم چلے جائیں گے، مہلت نہیں دیں گے۔ قرآن کریم سورۃ مومنون میں مردہ کہتا ہے جب روح نکالنے کے ٹائم پہ، اے فرشتے تو بول اللہ سے مجھے تھوڑی مہلت دے دے، مہلت دے دے، جو نیکیاں نہیں کرا تھا۔ قرآن کھولو، سورہ مومنین میں پورا میں کر کے بھیجتی ہوں، ریکارڈ کر کے بھیجتی ہوں، آیتوں کی فوٹوز پکڑ کے ریکارڈنگ میں کر کے میں بھیج دیتی ہوں آپ کو، انشاءاللہ دیکھ لو پورے آیتیں جو میں بتا رہی ہوں۔ پوچھو تمہارے اللہ سے مہلت دے دیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب نہیں، یہ تو جھوٹا ہے، پہلے بھی بولتا اب پڑھوں گا، ہم کیا کہتے ہیں؟ اب قرآن ہم پڑھیں گے، اب کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا ہو جانے دو، اب بچی کی ڈیلیوری ہو جانے دو، اب بچی کا اسکول ہو جانے دو، بچے کا ٹیوشن ہو جانے دو، اب ہم اچھے ہو جائیں گے، اب ہم یاد کر لیں گے، اب ہم صحیح دھوکہ دیتے رہے ساری زندگی، یہ پھر بھی نہیں اچھے ہوں گے، اب کوئی ملک بلا، ہاں کلا، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز بھی نہیں۔ نکالو روح ان کی، نکال لیں گے، پوچھیں گے مہلت دو، مہلت دو، آج مہلت ہی مہلت ہے، مہلت ہی مہلت ہے، ٹائم پاس نہیں ہوتا، فون لگا کے 2 گھنٹے گپے لگا رہے ہیں، وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں،
2 घंटे बैठ के ला इलाहा नहीं पढ़ रहे हैं, 2 घंटे बैठ के किसी को कुरान नहीं सिखा रहे हैं, 2 घंटे कोई दीन का दर्स नहीं सुन रहे हैं, 2 घंटे हमारे लिए फजूल में जा रहे हैं, 2 घंटे ही तुम्हारे जाया हो गए। जन्नत फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत शौक है अच्छी जन्नत का, से ज्यादा शौक है मेरे रब को देखने का, फिर शौक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर तारीफ अल्लाह ताला की वो कैसे करते हैं, वो तारीफ सुनने का बड़ा शौक है मुझे। तारीफ अल्लाह ताला की जब करते हैं ना, वो तारीफ ऐसी होती है कि रब्बुल आलमीन का हुस्न जमाल इतना वसी, इतना बड़ा, एक मुट्ठी के अंदर सातों जमीन और आसमान आने वाली मुट्ठी कैसी होगी, ये एक आंख में पूरी कायनात के जर्रे जर्रे दिखते हैं, वो आंख कैसे होंगे। उसके पास मांगे बगैर किससे मांग रहे हो, किसके पास जा रहे हो, इतनी बड़ी हस्ती है। कान अल्लाह के अंदर, पेट के अंदर के बच्चे की सुन रहा है। कहते नहीं बाबा जी सुन लेंगे, गौसे पाक सुन लेंगे, रदी अल्लाह ये रहमतुल्लाह अलैह सुन लेंगे, अदब से नाम लेना बुजुर्गान दीन का, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की रहमत उन पे। अब बैठे हैं, ये इश्क है नहीं है, सही इश्क है, सही रहमतुल्लाह अलैह बोलो, नबी का नाम आए रदियल्लाहु अन्हु बोलो, कोई औरत बीबी का नाम है रदियल्लाहु अन्हा बोलो, ये छोटी चीजें सीखो, ये अदब और एहतराम है। अब ऐसा ना ले तो या गौस या गौस या गौस चिल्लाते रहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह, बदतमीजी चिल्लाते रहते हैं, वजद में वजद दिखाते रहते हैं, कोई अदब नहीं है। बड़े बुजुर्गों का ऐसा करते हैं, एहतराम करते हैं, एहतराम करते हैं ना, बड़े बुजुर्गों के सामने चिल्ला के बातें करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला कहते हैं नबी के सामने अपनी सौत, तुम्हारी आवाज को बुलंद ना करो, ठीक है। रूहों को 4 तरह की जिंदगी में, दूसरी जिंदगी में हम मौजूद हैं, तीसरी आलम बरज़ख में जाना है, चौथी आखिरत की जिंदगी है। इसके लिए हमें दारुल, ये दुनिया क्या है, ये दुनिया क्या है हमारे लिए, बोलो धोखा, और बोलो आप सब बोलो दुनिया के बारे में क्या है, आप रखते हैं तालीम, बोलो दुनिया क्या है, इम्तिहान है, और खबर की तैयारी है, और अल्लाह को राजी करने के लिए तैयारी है, अल्लाह को राजी करने के, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अल्लाह ताला के बताए हुए काम करो। अल्लाह को राजी करने के लिए हमारे तरीके के काम नहीं करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलो तो कबूल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अगर नहीं चलेंगे तो कबूल नहीं है, क्योंकि वो एक खत्मुल अंबिया हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, वो अंगूठी पहनते थे, खत जब लिखे बादशाहों को तो सील डाला है आपने, जब तक कोई नेकी के ऊपर नबी की सील नहीं, वो नेकी कबूल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं नमाज पढ़ती थी अरब में, जब गई, मेरी अम्मी पढ़ती थी बचपन से, हमें मैं वही पूछी, हमें क्यों नहीं सिखाया अम्मी ने, आराम से हमेशा बैठ के भी नीचे भी करती है। जब मैंने पढ़ी सही बुखारी मुस्लिम, जब हमें इल्म ले रहे थे, बोली यार ये अम्मी को अल्लाह ने पहले ही पसंद कर लिया, हम तो आज आके दीन सीख रहे हैं, वो तो जमाने से वैसी नमाज पढ़ती थी, सब उनको मजाक उड़ाते थे, हम भी मजाक उड़ाते अम्मी का खड़ के, मैं बहुत मजाक उड़ाती थी, हंसते हंसते मुस्कुराते, भोरी भोरी आंखों से यूं देख के मुस्कुराते, अल्लाह तुझे अपना बना ले, अल्लाह तुझे अपना बना ले, अल्लाह मुझे और आप सबको अपना बना ले, हम सबको अपना बना ले, अपना खास महबूब बंदा बना ले, अपना खास महबूब बंदा बना ले, तेरे पसंद के अमाल दुआ मांगो रोज, अल्लाह मुझसे तेरे पसंद के काम ले, तेरी नापसंदी के काम तू रोक दे। अब नमाज पढ़ते हैं, नमाज में कई फिरके हैं, नमाज कभी ऐसा पढ़ रहे हैं, कोई वैसा पढ़ रहे हैं, नहीं, मर्द जो पढ़ते हैं वही तरीका औरत का भी है, क्योंकि हमारे नबी मर्द हैं, हमारे नबी औरत नहीं है, हमारे नबी औरत नहीं है, उन्होंने अलग नमाज औरतों को नहीं पढ़ाए, मर्द के जरा पीछे औरतें खड़ा करती थी, तब अलग अलग नहीं था, एक ही कमरे में पढ़ते थे, मगर ऐसा कानून था, लाइट से उजाले के नहीं थे, चेहरे मुड़ के देखें, मर्द की मजाल नहीं थी कि मुड़ के देखें, अंधेरे में ही सुन्नत और फर्ज पढ़ के अंधेरे में चली जाती थी, निकल के चली जाती औरतें, तब मर्द पढ़ते पलटते थे। ये क्या हया है, ये क्या पर्दा है, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, मजलिस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में कोई ऐसी मजलिस कभी नहीं होगी।
मुड़ के नहीं देखा कभी औरतों को। औरतें नमाज पढ़ के निकल जाती थी। आज नमाज कब होती है? उजाला होता है। मैं मेरे बेटे को कहती, मोहम्मद ये कौन सी नमाज है ये जो उजाले में तुम पढ़ते हो? अब उसमें भी किरिक तुम्हारी। देख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़े, अंधेरे में पढ़े, जरा जल्दी पढ़ो। अब उजाले में नमाज होती है, उजाला हो जाता है पूरा सबा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को खत्म कर दिए। क़यामत तक जो है आबाद करते रहेंगे तो दुनिया रहेगी। कोई ना कोई तो आबाद कर रहा है। या जब उठा लेंगे 7 साल तक राहत ही आएगी। कब? ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद 7 साल तक राहत ही आएगी। फिर कान में से उनकी एक ठंडी ऐसी हवा चलेगी, सारे मोमिनों को मौत आ जाएगी, एक भी मोमिन नहीं बचेगा। पूरे मोमिन को मौत देने के बाद अल्लाह क़यामत करेगा। ये बातें याद रखना। आज भी ईमान में कोई होंगे दुनिया में, मैं नहीं हूँ, आप नहीं हैं, या हो सकता है आप में से कोई है, हो सकता है दुनिया में से कोई है, ये मैं और आप कोई नहीं बता सकते, ये अल्लाह ताला जानता है। ठीक है, मौत तो लाजिम बरहक है। मौत की तैयारी का मतलब ये नहीं कि जाए बैठ गए, कपड़े पूरे उठा के अंदर रख दिए, गरीबों को दे डाले, अब जाके वो काम नहीं करना है? बिन्नी के बनारस के सब उठाए, दुल्हने उठाए दे दिए किसी और को, अरे मौत भाई नहीं पहनना, नहीं पहनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मगरिब हो गई, सजो, पहनो, ओढ़ो, सजो सवरो, कंघी चोटियां करो, शौहर के लिए सजो, सब करो। गैर मर्दों के लिए तवाइफ औरत है। मैं और आप शादियों में जाते थे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जेवर डाल के, ऐसे यूं साड़ी डाल के, कभी शरारा पहन के जाते, कितने मर्द देखते। किसी को हमारी नाक अच्छी लगती थी होंगी, किसी को आंख अच्छे लगते थे होंगे, किसी को सिंगार अच्छा लगता था होगा। कितने मर्द से जना हुआ ना। कभी रोती हूँ मैं, अल्लाह हम तवाइफ औरत बन गए थे ना, हमें मालूम ही नहीं था ना, हम समझते ही नहीं थे ना। हाथों में मेहंदी लगा के, पैरों में मेहंदी लगा के, इतना हम सब कर लिए ना। बख्श दे अल्लाह ताला। बुरखों को भी संवारना छोड़ दो, बुरखों को भी संवार के जो हम लेस लगा लेते निकाल दो, अल्लाह की खातिर काट दो, छोड़ दो, घर में पहनो। घर में शौहर रहते हैं नमाज के लिए, इसका शौहर नहीं है, वफात हो गई है, बेवा है औरत, कोई बात नहीं, नमाज के लिए सजो सवरो, नमाज के लिए पहनो ओढ़ो, गैर मर्द के सामने चादर ले लो, सजो सवरो, इबादत के लिए सज सवर के अल्लाह के पास आना, ये अल्लाह का हुक्म है कुरान के अंदर। जीनत के साथ आओ मस्जिदों को, मेरे पास जीनत। क्रिश्चियंस को देखी मैंने कल नहीं परसों, जमाने के बाद वॉक को गई थी, बनारस की साड़ियाँ, जेवर, कपड़े सज सवर की, 6 बजे देखी बाहर पूरे अपने चर्चों को निकले। बोले हमारे मुसलमान देखो मैक्सी पहन के सो रहे होंगे, कोई सजा सबरा नहीं रहता। फजर की नमाज में भी एक अच्छी दुपट्टा उठाओ, एक अच्छा ड्रेस पहनो, अल्लाह के सामने सजो। अल्लाह के लिए नहीं संवरते, माल अल्लाह ताला का, कपड़े अल्लाह ताला के, जिस्म अल्लाह ताला का, दुनिया अल्लाह ताला की, ज़मीन आसमान अल्लाह ताला के, जन्नतें अल्लाह ताला के, आखिरत अल्लाह ताला की, कायनात अल्लाह ताला की, उसके लिए नहीं है। सब उसने हमारे लिए दिया, हम उसके लिए नहीं है। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह कहता है खूबसूरती मुझे बड़ा पसंद है। कभी भी थोड़ा सा एक पिंपल भी मैं कहती हूँ, अल्लाह ताला तुझे खूबसूरती पसंद है ना, जल्दी जल्दी पिंपल को ऑल्ट्रेशन करती हूँ, अल्लाह तुझे पसंद है ना, मेरा चेहरा कहीं खराब ना हो जाए, मैं ज़रा कुछ लगा लूँ, फेस पैक लगा के ज़रा चेहरा अच्छा रखूँ, पाक साफ रखूँ, तुझे हुस्न जमाल पसंद है ना, तुझे अच्छा पसंद है ना। इसका मतलब गोरा रंग नहीं, सौले भी हों, पाक साफ रहें, ज़रा अच्छा सा, बाहर जाके काजल लगा के नहीं जाए। खिड़की बड़ी खूबसूरत होती है, देखो ये लटक रही है ना, ये खिड़की को देखो, ये खिड़की को देखो, वो सफेद वाली लटकन वाली अच्छी है या ये खिड़की अच्छी है? अब बताना कौन सी खिड़की अच्छी है बहनों, जोर से बोलो। मुझसे नहीं मोहब्बत करते अल्लाह की खातिर, मेरा गला साथ नहीं दे रहा, जोर से बोलो, ये खिड़की अच्छी है या ये खिड़की अच्छी है? क्यों अच्छी है? सच सवर के काजल काला और लाल पीला हरा जो आंखों को लगाते हैं, उसको लगा के बाहर नहीं जाया करो। खिड़की से सब कुछ नजर आता है। नैन मिल गए तो दिल मिल गए, नैन मिल गए तो दिल मिल गए। मर्द देखते, बुरका भी करके रहो, झांक के देखती कैसी औरत हो, दाढ़ी वाले मर्द। ये सारी हम औरतें मर्दों को झांक के नहीं देखा करो कैसा है वो, कौन है, नहीं देखा करो। दुकानदार को कभी हमें नहीं, अब कैसी हालत है कि दुकान में कौन मर्द है, मैं जाती हूँ बैतुल माल में, कौन मर्द है, कौन हेड है, कौन है, मुझे कुछ नहीं मालूम, किसी को नहीं देखा मैंने ना। बात करना, बात किसी से मर्द से करो, पड़ोस में नीचे देख के बात करो, आंख में आंख मिला के नहीं बात करो ना।
आंख में आंख मिलाने से ही तो नजर आता है। मैं आपको देखूं तो आप नजर आएंगे ना, इधर देखो आप पूरे नजर आते हैं। कंसंट्रेशन हो गया, मैं यूं देख के बात करूं कैसे मुझे नहीं मालूम। ये खबर की तैयारियां हैं जो दुनिया में आम जिंदगी में छोटे बड़े काम जो कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी भीग गई और खिकोरते खिकोरते जमीन को कहे इसकी तैयारी करो, सब इसकी तैयारी करो, और कहते हैं खबर को याद करो तो दुनिया की लज्जत खत्म हो जाती है, दुनिया का मजा खत्म हो जाता है। खबर को याद, पार्टी में गए, शादी में गए, खबर को याद करो, आखिरत को याद करो। क्या आबा छोड़ को जाना सो है सभी, ये सब छोड़ जाना है। कोई अच्छी भारी कार में आए होंगे, हम टू व्हीलर में गए होंगे, या साइकिल में गए हैं, या गधे के ऊपर गए हैं, या गधी के ऊपर गए हैं, छोड़ अभी छोड़ जाना हो, और छोड़ जाना है। पल पल अगर ये बात आएगी छोड़ जाने की, दिल में कोई तमन्ना ही नहीं जागेगी हमारे। छोड़ जाना है। शौहर सताते हैं, तकलीफ देते हैं, छोड़ो, आखिरत में अच्छा शौहर है, या ये मिलेगा या कोई और मिलेगा, वल्लाहु अलम। दुआ करो अल्लाह इसको अच्छा कर दे, अल्लाह इसको नमाजी बना दे, इसको अच्छा बना दे, इसे साथी बना दे, इसे जन्नत बना दे। तू माफ कर दे, तू गफूर रहीम है, तो उसे मुझे आखिरत में दे दे, मेरे शौहर को दे दे। नहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छोड़, अल्लाह कोई और देगा आपको। या बीवी अच्छी नहीं है तो सोचो इसी से गुजारा कर लो कि आखिरत में तुम्हें हूरें मिलेंगी, 70 हूरें देंगे, 2 बीवियां देंगे, कितना बड़ा मिल रहा है माल तुमको। अब औरतें कहते हैं हमें क्या दे रहा है अल्लाह ताला, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, हमें क्या दे रहा है अल्लाह ताला। देखिए सारी हंस रही है, सबके सवालात होते हैं क्या दे रहा है अल्लाह ताला, हमें क्या दे रहा है इतनी इबादत करके। तुमको क्या दे रहे हैं पता है? जो मर्द सारी जिंदगी रियाजत करेंगे, दुनिया में ठोकर में बीवी औरत, माफी चाहती हूँ दूर रखती हूँ, ठोकर, घुटनों के नीचे अक्ल, बीवी की औरत की जात कैसी, तेरी कमजर, ये बोलने वाले मर्दों को नहीं मिलेंगे। जो औरत की इज्जत करते हैं, माँ, बहन, बेटी, बीवी, चारों की जो इज्जत करते हैं, उनको अल्लाह ताला ईमान वाली एक औरत देंगे। मालूम है, आप अच्छे बनेंगे तो मर्द की पूरी रियाजत को आप उठा के देंगे या मुझे उठा के देंगे। अल्लाह ताला इतना अनमोल, ये 70 हूरों के ऊपर। अब शादी है, ओके, ये शादी महल है, समझो ये शादी महल है। मैं नहीं बोल सकती अपने आप में, चलो मैं ही बोलती हूँ, क्योंकि जन्नत में बनना है ना हम सबको, इंशाअल्लाह। नहीं बोलना जन्नत में, इंशाअल्लाह नहीं बोलना, अल्लाह जरूर बनाएगा, अल्लाह बनाएगा, तू बना दे, तेरे सिवा कोई बना नहीं सकता। मैं दुल्हन अगर हूँ, जब मेरी शादी हुई, समझो आज ही शादी हुई है मेरी, अब मैं दुल्हन हूँ, मैं दुल्हन जो सवर के सच के रहूंगी, मेरे मुकाबले में कोई और उसकी इज्जत दूसरे की होगी? जोर से क्यों नहीं बोलते? इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों को क्या होगा? कोई और दुल्हन की बराबरी कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, पक्का नहीं कर सकेंगे। काली होगी दुल्हन ठीक है, गोरी होगी ठीक है, जैसी भी होगी दुल्हन का मुकाबला नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से ईमान वाली औरत के ऊपर 70 हूरों के ऊपर वो राज करेगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अगर ईमान वाली औरत बनके दूसरे मर्दों के सामने नहीं जाएंगी, सजावट अपना छुपा के रखेंगी, अपने शौहर की इताअत करती रहेंगी, जो भी अल्लाह के हुकूक हक, हुकूकुल इबाद, इंसानों के हक, ससुराल है, मैका है, पड़ोस है, सबके हुकूक अदा करेंगे, सबके फराइज अदा करेंगे, तो वो औरत को उठा के देंगे, 70 हूरों के ऊपर राज करेगी। सुभान अल्लाह। मैं जल रही थी जब अल्लाह ताला बोल रहे थे 70 हूरें हैं, तो हमें कहाँ गए, कब टाइम आता है, हमें कब बात करते हैं, अल्लाह आलम। होता है ना प्लानिंग, नई प्लानिंग जब मैं सीख रही थी नया नया, ओ नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो क्या कि अल्लाह ताला कर रही, फिर जल्दी जल्दी हिफज करती थी, फिर ढूंढना वो क्या वो नहीं, फिर उलमा से पूछती नहीं वो कैसा है कैसा है कैसा है, तब आखिर में जब पता चला वाकई तो रब है, वाकई तू इंसाफ वाला है, वाकई तू इंसाफ करता है, वाकई तू प्यार करता है, वाकई तेरी देन के वतनी कोई देन नहीं है, तेरे सल्तनत, तेरे खजाने के वतनी कोई चीज नहीं है। तूने ईमान को इतना पसंद किया, अल्लाह में कसम खाती हूँ आज के बाद मैं ईमान में रहूंगी। अब समझे हासिमा मैं क्यों डरती हूँ, क्यों इतना पर्दा करती हूँ? इसी वजह से, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए तो मुझे पाना है तो कुछ खोना है, दुनिया की कोई चीजों को खोना है। ठीक है, तैयार हैं ये सारे ईमान वाली बनने के लिए? राज करोगे हूरों पे,
शौहर आपके पसंदीदा, आप शौहर के पसंदीदा बन के ज़िंदगी गुजारेंगे। ये तो आरजी दुनिया है, किसी की मौत आती है तो इतना दुख नहीं करो, मातम नहीं करो, नोहा नहीं करो, मुंह को नहीं पीटो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जाओ उनके मुंह पे मट्टी उड़ा दो, मुंह के अंदर डंडा ठोसो, जोर से चीखे ना मारे। कई भी मौत होती है, जो सुन रही हैं, जो बैठी हैं, जो बाद में सुनेंगे, मेरी दुनिया में रहती दुनिया तक या मेरी दुनिया की जाने के बाद भी अगर मेरा पैगाम अगर सुनेंगे, कोई मौता है तो बोलो, यहाँ पे नहीं करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले प्यार से बोलो, चिल्लाओ नहीं उन पे, उनको गम होता है, नरमी से बोलो, नहीं करो, अल्लाह के नबी ने मना करे हैं। ठीक है, बच्चों को परवरिश करो, चाहिए इद्दत खत्म होने के बाद पैगाम भेज के निकाह कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि निकाह नहीं कर सकते, दूसरा निकाह कर सकते हैं। 80 साल की बूढ़ी भी निकाह कर सकती है, 90 साल की बूढ़ी भी निकाह कर सकती है, 100 साल का बूढ़ा भी निकाह कर सकता है। कोई हमारे इंडिया में जो पैगाम को गलत समझते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौत का पैगाम अल्लाह ने एक ना एक दिन सबको हमें मिलेगा, हमें जाना है, हमें वापस निकल के दुनिया से दूसरी दुनिया बदलना है। ये एक दुनिया से निकल कर दूसरी दुनिया को जाने को, जगह बदलने को मौत कहते हैं, जो यहाँ से निकाल कर ले जाकर रूह को अल्लाह ताला हम पे रख देंगे। और रही बात, मैयत मर जाती है तो मैयत के ऊपर क्या फराइज होते हैं, घर वालों पे क्या फराइज होते हैं? तरका, क्या होता है? तरका बोले तो क्या? जो छोड़ कर गए, तर्क कर दिए ना, जो दुनिया से जो छोड़ के तर्क कर दिए, उसका बंटवारा, उसका कितना हिस्सा, किसका क्या देना, माँ का कितना, बीवी का कितना, बच्चों का कितना, सब लिखा है। उससे पहले देनदार का कितना कर्जा अगर मौता है तो अदा कर दें, अगर नहीं अदा करेंगे तो मैयत को लटका देंगे ऊपर, छोड़ेंगे नहीं, उसको लटका के रखेंगे, क़यामत तक लटकती रहेगी मैयत जब तक उसका कर्जा हम अदा नहीं करेंगे। कोशिश करो, हमारे माँ बाप भी अगर मर गए हैं, किसी से लिए होंगे, किसी से लेके भूल गए होंगे, कभी कभार 5,000 रुपये सदका कर दो, एक 10,000 रुपये कभी जमा करके, 1,000 रुपये जमा करके, अल्लाह मेरे माँ बाप से अगर कोई कर्जा रह गया है तो कर्जा पूरा अदा कर दे। अल्लाह क़यामत में कितना खुश होंगे, दर्जात मिलेंगे तो पूछेंगे, तो अल्लाह बोलेंगे फलानी औलाद से आया है, कितना अच्छा होगा। तो रूहें जब यहाँ से चले जाती हैं ऊपर, दूसरे रूहें पूछती, उन्होंने कहा अच्छा ही अल्लाह, में सुनकर ऐसा लगता है अल्लाह मैं वो चली गई हूँ क्या, मैं चली गई हूँ क्या। रूहें दूसरे रूह को पूछते, उन्होंने कैसे ही, अच्छा ही नहीं, यहाँ नहीं है, नहीं नहीं है, कब की मर गए ना उन्होंने, कुरान के अल्फाज, कब की मर गए ना, ओ शायद दोज़ख को चले गए, बीच दोज़ख में देखना चाहते हैं जन्नती को, अल्लाह ताला बीच दोज़ख दिखाते, दोज़ख के बीच में एक झाड़ है, ज़क़ूम, ये एक झाड़ है, पीप और खून से पलता है, वो खिलाते हैं अल्लाह ताला। आज हराम का जो खा रहे हो, हलाल हराम नहीं जान रहे हो, रोजे नहीं रख रहे हो, अल्लाह को भूल के बिठाए हो, जो फैशन करके घूम रहे हो, ये क्या कर रहे हो, एक दिन तो जाना ही है। देखो, इसके लिए डरना है, किसके लिए डरना है? जो झूठ बोलता है वो डरना है खबर में जाने से पहले, जो चोरी करता है वो डरता है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो डरता है, जो अल्लाह के कानून को नहीं मानता डरता है। मौत एक नेमत है मोमिन के लिए, मौत मजे की दुनिया है मोमिन के लिए। जब पूछते हैं तो बातें कहते हैं, नहीं नहीं रुक जाओ, दुनिया के परेशानियों से निकल के आया है, जरा आराम कर लेने दो, फिर उसके बाद पूछो। मैं बोली अल्लाह ताला खबर में क्या करते हैं, मैयत आती है, उठा के 2 काले फरिश्ते आते हैं, मेरे लिए भी आएंगे, तुम्हारे लिए भी आएंगे, अल्लाह में माफ कर दे। वो काले फरिश्ते जमीन चीरते हुए, सिंगे लंबे लंबे जमीन को चीरते हुए निकलते, चिल्लाते हुए आएंगे, जिन्नो इंस नहीं सुनेंगे, पूरी कायनात सुनेगी। क्या हाल होगा खबर के अंदर मेरा और आपका, मैं भी रहूंगी, आप भी रहेंगे, क्या होगा वो हाल, क्या होगा वो हाल। तैयारी की है आपने खबर की? अल्लाह के नबी ने पूछा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तैयारी की है आपने खबर की? तैयारी की है खबर की? तैयारी हमने बिल्डिंग की है, तैयारी दुकानों की है, तैयारी जेवर की है, तैयारी हज की करे, सेल्फी लेके बेचने के लिए, हज करे, हज दिखाने के लिए लोगों को, हज करे, हार पहनकर सबको दावतें खाने के लिए। आ गए तो वापस हाजी पुकारो, हाजी माँ, अल्लाह की कसम कभी मुझे हाजी कभी नहीं बोलना जब मैं हज करूं, फिर मुड़ के नहीं देखूंगी तुम लोगों पे। क्या पता हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ है, क्या गारंटी है तुम्हारे पास, सील है तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे?
तैयारी कैसी होनी चाहिए हमें? अल्लाह ताला को राज़ी होने के लिए, अल्लाह ताला की खबर में जाने के लिए हम तैयारी करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, हम बिस्तर भी शौहर के लिए जो हम करते हैं वो भी इबादत रखी है अल्लाह ताला ने। नियत तुम करो, मजा लेने के हिसाब से करो तो मजे का नियत होगी, इबादत की नियत करो तो इबादत की नियत होगी। मैं वजू बनाती हूँ, नियत इबादत की करती हूँ। आप वजू बनाओ, इबादत की नियत करो, इबादत मिलेगी। फिर उठो, इस्तिंजा करो, वॉश कर लो, हाथ पैर धो लो, इस्तिंजा कर लो, फिर आप जिक्र करते रहो, फिर वो भी इबादत रहेगी गुस्ल करने तक। ये जिंदगी है। रूह को मारेंगे, अब खबर के अंदर आएंगे तो फरिश्ते उठा के बिठाएंगे, सो दे रहेंगे ना, लेटे होंगे ना, उठा के बिठाएंगे, उठा के बिठाएंगे, मुझे और आपको बिठाएंगे। 3 सवाल जो बैतुल माल में मैंने कितने महीने कोशिश की, मैंने कहाँ से कहाँ तक, रब्बुल आलमीन कितने बड़े हैं, जमीन की तह से लेकर अर्श तक मैंने पूरी कोशिश की हूँ, है ना, कि रब्बुल आलमीन की मोहब्बत दिलों में जगने के लिए। कितना वसी रब है, कितनी बड़ी कुदरत है। 7 आसमान के ऊपर अर्श के नीचे एक समंदर है, ये एक समंदर की नहर, एक नहर 7 जमीन आसमान को लेके चले जाएगी। इतनी बड़ी समंदर का मालिक है, इतने इसका मालिक है। वो कहता है मेरे पास आने से पहले तैयारी करो, मैं भेजा हूं तुमको तैयारी के लिए, आने के लिए, रहने के लिए नहीं हो तुम लोग, रहने के लिए नहीं हो। फिर उठा के बिठाएंगे, 3 सवाल जवाब करेंगे। मन रब्बू का, कौन है तेरा रब? उसके बाद मन नबियों का, कौन है नबी? मतलब क्या? क्या जी, 2 मिनट का काम जी, याद कर लो जी, खबर में बोलेंगे वो, बहुत लोगों को सुनी में। रदीतु बिल्लाहि रब्बा बिल इस्लामी दीना बि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी। याद है बा, पढ़ते रहती क्या धड़ा, क्या हिंदू, हाँ क्रिश्चियन, हाँ सब मालूम। जो औरत बोलती है ना, मर्द बोलते सब मालूम, अंदर से यूं निकलता है जिन उनका, बोलते वक्त भी यूं कर मालूम सब अम्मा। मुझे कुछ नहीं मालूम, जितना रब बताएगा मैं उतना बताऊंगी, जितना नहीं मुझे नहीं मालूम। पूछेंगे कि क्या तूने अल्लाह को अल्लाह माना या किसी नजूमी को माना, किसी आमिल के पास गए, कोई हजरत जी को बड़ा माना, किसी को करे, या अल्लाह को ही बड़ा माना? अगर नहीं करे हो तो वहां बोल नहीं सकेंगे, जवाब ये जाएंगे। आदत होती है ना बोल बोल के, मस्तान मस्तान मस्तान, बाबा 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 जी बोल बोल के आदत रहती है। मेरा पीर ही मेरा सनम है, मेरा पीर ही मेरा खुदा है, कब्र में बोलेंगे मेरा पीर ही मेरा खुदा है। यही होगा। समझ में आ गया मन रब्बू का क्या है, मन नबियों का, कौन नबी तेरे? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़े? हम नमाज नहीं पढ़ते। रुकू से पहले, रुकू के बाद हाथ उठाना कि मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सामने, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी औकात नहीं है। हमें नहीं उठाते बाबू, अहले हदीसा उठाते सो नहीं ना, आपके नबी ने किया है, मैं किसी का नहीं सुनी, मैं कोई फिरके के पास नहीं पढ़ी, मैंने अरब में दीन जाना, अरब में पढ़ाई की मैंने, वहाँ कोई फिरके नहीं है। वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया है, सारा अरब करता है, पूरी दुनिया वाले करते हैं। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश 3 लोग ही हैं बदल के पूरे टेढ़े करके। मेरे पास कितनी औरतों की इलाज आए कि घुटनों के अंदर का गुद चला गया, बोले अच्छा होना, अच्छा होना, अल्लाह और भी गुद निकाले, और भी गुद निकाल दे सबका, या हिदायत दे दे। तेरे बंदे हैं, तू चाहे तो हिदायत दे, तू चाहे तो सजा दे। टेढ़ा कर करके यूं बैठ सकती हूँ, यहाँ पे इजाजत है, यूं टेढ़ा कर करके यूं बैठ के नमाज पढ़ पढ़ के गुद ही पूरा खत्म हो जाता है। रीढ़ की हड्डी, औरतें खड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती। अरबियों को देखो, नमाज जो पढ़ते हैं, बुढ़ी 100 साल की यूं रहती है, यूं रोप यूं डालते हैं, वो कर वो कर वो कर, कामों वालों को यूं मजे से कराते रहते हैं। हमारे यहाँ पूरे यूं ढीले हैं। यस, रुकू में झुक के खड़ते नहीं है। हाँ, क्यों? सजा अल्लाह की, सजा अल्लाह की। मोहर नबी की नहीं लगी ना नमाज पे, तो सजा अल्लाह की है। अब मेरे पास कितनी औरतें आए, इलाज किसमें हुआ? नमाज में। 30 साल नमाज पढ़ के हड्डियां नहीं हो रही हैं, ऑपरेशन करा डाले। हाँ, आ जाओ, तकलीफ बहुत होगी पहली बार, तैयार हो। नमाज पढ़ाई, तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नमाज पढ़ाई, रो रो के अल्लाह को पुकारी, कट 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 हड्डियां उसमें सीधी हुई। हड्डियां सीधी होती हैं नमाज में। डॉक्टर बोलता है नहीं पढ़ो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम नमाज पढ़े। डॉक्टर बोलता है कि गाय का गोश्त नहीं खाओ, क्योंकि वो गाय की पूजा करता है।
डॉक्टर सबसे पहले बोलता है गाय का गोश्त नहीं खाना, डॉक्टर सबसे पहले बोलता है नमाज नहीं पढ़ना। हम घुग्गू लोग हैं, हम लोग बेवकूफ हैं कि डॉक्टर बोलिया नहीं पढ़ना, डॉक्टर बोलिया नहीं पढ़ना। मेरी अम्मा दिल के कुछ इलाज पे गई थी, हॉस्पिटल में रही, वापस आने के बाद हमने कहा अम्मी ये डॉक्टर ने मना किया। कौन डॉक्टर? अल्लाह अकबर, 10 साल तक जिंदा रही। डॉक्टर ने बोला था खून पीप बन गया, वे जिएगी नहीं। मैं दुबई से आई थी, इमरजेंसी में आई थी, सीधा हॉस्पिटल गई थी मैं। अम्मी चले गई, अम्मी चले गई। मैंने इतनी दुआ की रास्ते में, सारे फ्लाइट्स के पूरे बादलों में दुआ की, रूह तुम्हें निकाल, आप निकालते ना अल्लाह ताला, रूह तुम्हें निकाले नहीं तो नहीं निकलती ना। बोल रही 1 घंटा है रूह निकलने के लिए। कैसा होता अल्लाह, तुम्हें ना निकालते, आपके कब्जे में है ना। अल्लाह की कसम 10 साल तक रूह नहीं निकली, रूह ही नहीं निकली। नहलाने के लिए पानी तैयार हो गया, पानी तैयार कर दिए, भेज दिए, लेके जाओ घर में। मैं बोली डॉक्टर्स को, नहीं ये रोजदार है, नमाजी है, बोरिंग में था, लेके चलते हैं हम लोग, लेके चले। वो थी औरत, लड़की थी, उसने कहा था नहीं मैंने भी अरब में मैंने तालीम की हूँ, वहाँ की डॉक्टर हूँ, मैं भी हया जानती हूँ, 1 घंटे का टाइम दो, जरा सब्र करो। वो खून का एक लॉस्ट इंजेक्शन देती हूँ। अगर देखो उसके बाद 10 साल तक जिंदा रही, 10 साल तक जिंदा रही। रूह हुक्म अल्लाह का हो तो निकलेगी, नहीं तो निकलेगी। अमर अल्लाह, अमर बोले तो हुक्म, ठीक है। तो अल्लाह की बात याद रखिए, खबर की तैयारी करो। तीसरी बात, माँ दीनू का, दीन कौन सा है तेरा? माँ दीनू का, क्या है तेरा दीन? क्या है दीन हमारा? 11वीं। कहाँ है इस्लाम? रख लो तुम्हारे पास। 11वीं, 12वीं, 16 से अदा के फातिहा, या नहीं तो हैप्पी बर्थडे, या नहीं तो वेडिंग एनिवर्सरी, या नहीं तो घर की ठंडक, या नहीं तो गुलपोशी। ये नए 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 जो इजाद करे, ये दीन नहीं है। अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन दीन को मुकम्मल कर दिया। सूरह अल-माइदा, दीन मुकम्मल हो गया। दीन को नया तरीका नहीं दे सकते। मेरे और आपके बाप दादा दिए तो छोड़ दो वो दीन को, नहीं तो खबर के अंदर बोलेंगे। अल्लाह ताला 2 चीज करके मैं खत्म करती हूँ यहाँ पे इंशाअल्लाह। अब जरा करूं, ठीक ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो बीच में क्यों बोले आप खताकार हो गए। ठीक है, चले। कभी भी अमल को छुपाओ, जैसे हीरे पहनते हैं तो कोई नजर ना डालें, हम छुपा के रखते हैं, उनकी नजर लग जाएगी, इनकी नजर लग जाएगी। अब ये इबादत को छुपा के रख के अल्लाह तेरे लिए, अल्लाह ये तेरे लिए। नमाज कोई नहीं, लॉक करो, लंबी देर रुकू करो, लंबी देर सजदा करो, खूब बैठे रहो, अल्लाह ये तेरे लिए, आखिरत में देना। कहीं बयान करने जाते मैं कहती अल्लाह ये पूरा अजर दुनिया में तिनका भी नहीं दे मुझे, ये पूरा अजर मुझे आखिरत में रख दे अल्लाह, दुनिया में नहीं दे अल्लाह, बस अल्लाह तो आखिरत में दे दे अल्लाह, तो आखिरत में दे दे। खबर में अगर 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 बदकार है, दीन पर नहीं है। मैं भी 16 से अदम के रोजे रखती थी, मैं भी 11वीं करती थी, मैं भी 12वीं करती थी, मैं भी वलियों के पास जाते जाते नबियों के पास चली गई, सारे कई नबियों के पास जाके देख ली। बाद में देखने के बाद इतना समझ, सब अल्लाह की इबादत करें, हम क्यों इनकी इबादत करें? नहीं, आज की बात नहीं करूंगी। हूद नबी अलैहिस्सलाम की मजार की तब ऐसा रोना, ऐसा पहाड़, ऐसे आज तक वो खड़े के खड़े हैं कश्तियां। वो जमाने की हजारों साल सदियों से कोई चिड़िया वहां पे नहीं है। जो चीजें अल्लाह ने आंखों से दिखाने के बाद मैं छोड़ दी इस दुनिया को तेरे लिए। कैफा तकफुरून बिल्लाह, अल्लाह पूछता है कैसे तुम कुफर करते हो मेरे साथ? तुम मुर्दा थे माँ के पेट में, मैंने तुमको जिंदा किया, तुमको जिंदा दिया, हयाती दिया, तुमको मार डालूंगा। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। पढ़ना तो सबको आता है, माना नहीं आता। माना जानेंगे इसके बाद से, रोज बैठ के 5-5 लाइन मानी पढ़ो। सूरह बकरा से इंशाअल्लाह शुरू करो, 5 लाइन माने से पढ़ो, कुरान समझ में आएगा। फिर समझो, ये चाहे मेरे पास जो मेरे ग्रुप में है, यूट्यूब में पूरे हैं 300-400 पूरे वीडियोस हैं, उसमें एक सूरा का करके हूँ मैं तफसीर, वो डाल के सुनो, पूरा डिटेल्स देकर हूँ। जितना कर सक रही हूँ कर रही हूँ, अल्लाह जानता है। जितना शौहर बच्चे घर दार सब देखकर पूरा करके आखिरत का सामान तैयार कर रही हूँ, अल्लाह उसमें बरकत डाल दे। कल रात को देख रही थी यूट्यूब में कितने हुए,
43,000 तक हुए अल्लाह ताला, उन्होंने कितने खानदान को भेजे होंगे? 43,000 इंटू कितने खानदान मिलाए तो कितने? कैलकुलेट कर रही थे, करते यूं सो गई मैं पढ़ते पढ़ते जिक्र। कैलकुलेशन में पैसों में है, कितने लाख जमे, कितने जेवर जमे, कितना करे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को बैठ के गिनते थे, मैं कितने अमाल करिया, कितने नहीं करिया। आज के बाद गिनती करोगे रात को सोने से पहले, क्या हमारे अमाल अच्छे हुए या नहीं हुए? कम हो गए तो मैं जल्दी क्या करती हूँ पता है? आप कॉपी कर लो इंशाअल्लाह। लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए बेहतरीन नमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे लिए बेहतरीन, लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उस्वा बोलते नमूना, आप हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप जो करें वैसा किया करो, जो उनको चाहने वाले रास्ता करते वो कर लिया करो। आपको मैंने कॉपी की हूँ, आपने सिखाया है। 6 घंटे तक जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सुबह की नमाज के तब पढ़ती थी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाति, ये ज्यादा पढ़ती हूँ मैं। कहीं क्यों बोलो? क्यों? अल्लाह ने जितने दुनिया में बनाए हैं, जितने शजर हैं, सारे उतने बराबर अल्लाह की तारीफ होगी नहीं। मिल अस्समावाति मिल अल अर्द, जमीन और आसमान के बीच में कितना गड़ा है वो भी भर जाए। एक और एक दुआ है, शायद मैं करके भेजी हूँ, कभी भेजूंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 चीजें में सवाल जवाब जो नहीं देता क्या बोलेगा पता है? कौन है अल्लाह? सुना था मैंने, सुना था मैंने। कौन रसूल? नहीं जानता, मैंने सुना था। मादीनों का नहीं मालूम। अल्लाह ताला खोलेंगे जन्नत की खिड़की, फरिश्ते खोलेंगे, दिखाएंगे, देख ये दर्जा तुझे मिलता था, ये दर्जा तुझे मिलता था, ये वो जन्नत थी। हाथ मलते रह जाएंगे ना। कभी समझो एक मॉल को गए हम लोग, एक मॉल ऐसा हसीन खूबसूरत से एक पैलेस को चले गए, इतने जेवरात। हम दुबई में थी ना, मैंने कपड़े भी सोने के होते थे, और ब्लाउज को देखती मैं, अल्लाह बड़ी अच्छी है, लेना इंशाल्लाह अल्लाह। हाँ, अब आज को सी पता है, ईंटों की जन्नत की, एक सोने की, एक हीरे की, एक याकूत की, एक मरजान की, जो जन्नत का पढ़ते हैं ना, ये मजा आ गया। वो ब्लाउज गई काम, इंटरेस्ट हट गया। वो यूं लटका नहीं, यूं लंबे बाल में यूं तार सोने के, अल्लाह क्या प्यारे हैं ना ये। फिर बोले अल्लाह ताला ने बोले सीना खोल के बाहर जाना या बाल खोल के जाना सेम है, नहीं चाहिए अल्लाह ताला वो। समझ में आ रहा है? दीन जानने के बाद कहाँ कहाँ आपको फुल स्टॉप आते हैं, आप वो उतना जान लोगे। अल्लाह ताला टीवी को हर घर से छुड़वा दे, हर घर से खत्म कर दे। ये टीवी से मर्द औरत को देखते हैं, औरत मर्दों को देखते हैं। अल्लाह मेरे घर को, आपके घर को, सबके घरों को से निजात दे दे, निजात दे दे, निजात दे दे, निजात दे दे, अल्लाह निजात दे दे। खिड़की दिखा के जहन्नुम दिखाते हैं, जहन्नुम में जल रहे हैं तो परेशान, जन्नत दिखाते हैं, जहन्नमी को जन्नत दिखा के बंद कर देते हैं खिड़की, जहन्नुम की खिड़की खोल देते हैं। जहन्नुम से बिछोना लाया जाएगा, आग का बिछोना डाला जाएगा, आग पे सुलाया जाएगा, फिर बोलेंगे आग का ओढ़ना उड़ाया जाएगा, आग का ओढ़ना लाके उड़ाया जाएगा। अब फिर वहां से अंधा और गूंगा सुनेगा किसी की भी नहीं, आंखों से देखेगा भी कोई नहीं, ऐसा एक फरिश्ता है। उसके हाथ में हथौड़ा देंगे, ये मारेगा, चिंदियां हो जाएगा, सर फोड़ेगा अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह को नहीं रखा, इसमें अल्लाह को नहीं रखा, ये अल्लाह के लिए नहीं झुका, ये बुजुर्गाने दीन के लिए झुका, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं चला, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं चला। फोड़ देंगे, ये मौत है, फोड़ देंगे, सिर के चिंदियां बना देंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर फोड़ेंगे, क्या हशर होगा। सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, अंधेरी होगी, जमीन, आहा मेरे अल्लाह की जमीन नहीं देना चाहती थी ना मिट्टी, आज यही बात मैं सब लोगों के सामने रखने वाली हूँ इंशाअल्लाह। यही बात मैं लाने के लिए इतनी कोशिश कर रही थी, तब से अल्लाह ने मुझे हिम्मत दिए, आवाज दिए, शुक्र अल्लाह का अदा करती बीमारी भी गायब हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमको इन चीजों से महफूज कब रखेंगे? कब रखेंगे? जो दुनिया में उसके तरीके पे चलेंगे, नबी के तरीके पे चलेंगे। टखने बंद करो, ये बंद करो, नहीं हम इतनी ऊपर पहनती, जेगिंग्स पहनते सो हमें फैशन, क्यों बेटा?
पहनो, आई डोंट माइंड। उसके ऊपर सॉक्स पहन लो, बाहर गए थे। नहीं सही है, नहीं अम्मी जान क्या बोलती, सही है नहीं, पहनो जेगिंग्स पहनो, आप मिड्डी पहनना चाहती शोर के सामने पहनो, मना नहीं है, जो पहनते हैं पहनो, हया के साथ रहो। बाहर ये औरतें टकना ना दिखाओ, हमारी औरतें माशाअल्लाह इतनी नमाज पढ़ती हैं, इतना बुर्का पहनती हैं, इतनी ऊपर साड़ी उठी होती है, इतनी ऊपर साड़ी उठी होती है, टकने दिखते रहते हैं। आप सबसे पहले प्लीज अल्लाह का वास्ता देती हूँ, अल्लाह ताला ये पिंडलियां अपने दिखाएंगे, वो उनकी शान के हिसाब से होंगे, उनको कभी नजर नहीं आएंगे जो खुद की पिंडलियां दिखाएंगे। अल्लाह नाराज होता है, देखता नहीं है, बात नहीं करता है, अल्लाह ताला खूब गुस्से में रहता है। तो ये हाल जहन्नम में, जमीन कहती है आया तूने, आ गया मेरे पास, मेरे अल्लाह के साथ तूने किया, आ तुझे दिखाती हूँ। फसलियों के अंदर फसलें ऐसे जकड़ती है, खबर को तंग कर देती, खटखट आवाजें, क्या वहशत, क्या अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अज़ाबिल क़ब्र अज़ाब जहन्नम, औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। नहीं होता मेरे से अल्लाह, नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी कभार पार्क में कभी नमाज पढ़ती हूँ, कभी समंदर की तरफ सजदा करती हूँ, मिट्टी में मेरा चेहरा चला जाता है, मिट्टी में जब चेहरा चला जाता है कहती हूँ खबर बेसा होना कि अल्लाह, खबर बेसा सोना कि अल्लाह, खबर बेसा चेहरा आता है कि अल्लाह, खबर में हो जाती ना अल्लाह, मिट्टी हो जाती ना अल्लाह। तो राजी हो जाओ उससे पहले, तू राजी हो जाओ उससे पहले, तुझसे पहले अच्छी कर ले मुझे, मेरे गुनाहों से बचा ले। पूरा ऐसे ही उड़ के रहती हूँ, जंगल हो, बियाबान हो, शादी हो, मौत हो, कहीं भी हो, डरती हो। मेरा पार्लर था दुबई में, मेरा पार्लर था दुबई में, डरती हूँ अल्लाह से, छोड़ डालो, ये वक्त नहीं इबरत का है ना, मिल गया ना हमें, मोहलत मिली हुई है ना, छोड़ डालो सारी चीजें, तैयारी में रहो। मर गए हो ना, छोड़ो, उठो, आप वजू करो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों की तालीम करो, तरबियत करो, उठो, रोना धोना नोहा सब बंद, कोई नहीं करेगा इसके बाद, अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया, कोई नहीं करेगा इसके बाद। वो हशर खराब करेंगे, सांप बिच्छू आएंगे, एक सांप 10 मारेगा, 70,000 गज अंदर घुसेगा मुर्दा जमीन के अंदर, फिर ऊपर लाया जाएगा, फिर एक 10 मारा जाएगा। इसकी तैयारी नहीं है हमारे पास, क्या सोचा है? अब सांस है, सांस नहीं है, आज है कल नहीं है, सुबह है तो शाम में नहीं है, शाम है तो सुबह में नहीं है, क्या सोचा है? सुन्नी जमाती अहले जाओ दिखाएगा रब मेरा, जाओ दिखाएगा रब, या तौबा कर लो सही हो जाओ, या अल्लाह के पास जाकर बहुत अजाब उठाओगे। अभी भी वक्त है तौबा का, अभी भी तौबा के दरवाजे खुले हैं। सूरज उल्टी तरफ से आएगा तो तौबा कबूल नहीं होगी। आसार आ गए हैं कयामत के, सऊदी में नाच गाना फिर शुरू हो गया है, फिर शुरू हो गया, आ गए हम, करीब हैं, कब होगा अल्लाह ही आलम हो, जंग कब छिड़ेगी नहीं मालूम। अगर नेक इंसान है, नेक इंसान है, नेक इंसान की खबर में लेते हैं। खबर से पहले एक बात से लेती हूँ, जैसे मैयत होगी, अल्लाह ताला ये पूरा ऑडियो जरा डाल के सुन के लिख लो। सूरह फजर में कहते हैं बिस्मिल्लाह या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, वदखुली जन्नती। अल्लाह इन बच्चों को सब्र दे। पी लो जान, पी लो, पी लो, पी लो, पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला चॉकलेट दो इनको, चॉकलेट दो अल्लाह ताला, चिप्स दो अल्लाह ताला इनको, आइसक्रीम दो अल्लाह ताला इनको, कयामत तक पालो अल्लाह ताला इनको, राजिक तू पाल अल्लाह इनको, तू रिज़्क़ दे अल्लाह, कुछ दो खाने के लिए, कुछ दियो, ये दियो मौज से ना दियो। अब आवाज किसी की नहीं, चुप। इस्लाम में डराना भी है, प्यार।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अच्छी बच्चा ना। दुआ उनको होना था, इसलिए अल्लाह ताला उनको रुला के भेजे। रोने में भी हिकमत होती है, हर बात में हिकमतें होती हैं। संभालो, उठा के संभालो, उठो उठो, आप उठो, संभालो उनको। चलो हम स्टोरी बोलते हैं, सुनो जरा स्टोरी, स्टोरी सुनो। बिस्मिल्लाह। तो नेकोकार अगर होंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं आ जाओ नेकरू, आ जाओ, दाखिल हो जाओ जन्नत में। अल्लाह ताला पुकारता है। वो इंसान कितना खुश नसीब है, दुनिया में है, इबादत कर रहा है, दीन के काम कर रहा है। अल्लाह ताला बोलता है आजा आजा, बस दुनिया तेरे लिए, आजा नेकरू, आजा तू, हाँ, दाखिल हो जा जन्नत में नेक रूहों के साथ। ये अच्छा है या थप्पड़ा मारकर पीठ में घूंसे मार के निकालना अच्छा है? मोहलत पूछना अच्छा है या हम अपनी तैयारी करके रखना? तैयारी करें तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करें। फिर अल्लाह ताला कहते हैं नेक रूह अगर होगी तो जन्नत से, गौर से सुनना, जिस्म के लिए कफन लाते हैं, लाते हैं ना? कौन से ब्रांड का लाती हैं? मैक्स ब्रांड का। कौन से ब्रांड का बा? मैं ये ब्रांड का पहनी हूँ, मेरे जूते फलाने ब्रांड के नहीं बा, मेरी वॉच सऊदी की है, मेरे चप्पल कांके की, मेरे क्या की कांके की। तेरा ब्रांड कहाँ का है? तू कौन सी चिकड़ की बनी है? तू कौन सी मिट्टी से बनी है? क्या तेरी औकात है इंसान? कुरान में माना पढ़ के देखो। मैं तो चिकड़ देख के पहले यूं नाक को लगा के पास हो जाती थी, चिकड़ देख के गाड़ी खड़ा के कहती हूँ मोहम्मद देख ये चिकड़ से हम बने हैं। थी बदमो खड़ने नहीं हो रहा, मैं खड़ी रही, बोली देख हमारी औकात इतनी है, हम क्या गुरूर करें, हम देखो हकीकत को जानो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं अगर नेक रूह अगर होगी तो उसके लिए कफन, दुनिया में ब्रांड किसी का कफन का नहीं है, सब अमीर गरीब सब एक ही कफन आता है, वही तरीका है दफनाने का तरीका वही। अब क्यों तरीके अलग नहीं? वहां भी है, सीने के ऊपर अहदनामा कोई रख देते, कोई संदल रख रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, कोई खबर के अंदर चराग रख रहे हैं, अंधेरा है बोल के चराग रख रहे हैं। माशाल्लाह खुद की खबर में खुद ही रख लो ना, बाद में दिखाते हैं। नहीं, खुद की खबर में चराग रख लो, जब आएंगे मुनकर नकीर तब बोलो जिसको जलाए, आग से जलाएंगे खुद को। तो अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। तो वहां पे कफन जो तरीका होगा सबको होगा। दो तरह की रूह है, एक बदकार है एक नेकोकार है। नेको बदकार की जो बात गुजर चुकी है उसके लिए जहन्नुम से टाट लाया जाएगा। रूह के लिए भी कफन है, जिस्म के लिए भी कफन है। कितने कफन आते एक मैयत पे, आप लोगों को मालूम था? मालूम था? नहीं मालूम है। रूह के लिए भी कफन आता है, मैयत के लिए भी कफन आता है, रूह भी कफन में जाती है, जिस्म भी कफन में जाता है। समझ में आ रहा है? टाट लाएंगे, गंदी गंदी बदबूदार बदबो होगी फरिश्तों के पास, ऐसे बदशक्ल फरिश्ते आएंगे। देखने से इन्होंने कहा, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा मैं देखना चाहता हूँ फरिश्ते को, रूह निकालते बोले आप नहीं ताप पा सकेंगे, देख नहीं सकेंगे, मुड़ जाओ। चेहरे से आग निकल रही, सर से आग निकल रही है, ऐसा फरिश्ता है जो रूह निकालता, डरोनी शक्ल से आते हैं। इनको मार मार के डांट के डरा के लेके जाते हैं, लेके जाके रूह कहाँ ले जाएंगे? आसमान पे लेके जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहते हैं आसमान पे कोई बदकार नहीं चढ़ेगा। सुन रहे हो? शबे मेराज के बड़े गुन गाने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे चढ़ाने वाले, देख लो क्या कहता है अल्लाह ताला, आसमान पे नहीं आएगी बदकार रूह। आसमान पे जाने के बाद नहीं लेंगे, उठा के फेंकेंगे जनाजे में उसको, फेंकेंगे जनाजे में उसको, फेंकेंगे बदकार रूह को। नेक रूह अगर होगी, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें अता कर दे, अल्लाह हमें अता कर दे, अल्लाह हमें अता कर दे, हम सबको अता कर दे। आसमान से, जन्नत के अंदर से, जन्नत से एक कफन लाया जाएगा, जन्नत से अतर लाया जाए। अब मैं इतर लगा रही हूँ, आप इतर लगा रहे हैं बाहर जाते वक्त? नहीं लगा रहे। फूल लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। सब अंदर रख रहे हैं, बाहर नहीं लगा रहे। घर में बेहिसाब सजो, मैं बेहिसाब रहती हूँ,
बाहर नहीं, बाहर थोड़ा सा भी इतना नहीं, इतनी औरतें मेरे से मिलती हैं, कभी दिल करता है अल्लाह नहीं, अल्लाह कैफ तकफुरून बिल्लाह, ये आयत में कहती हूँ कैसे तेरे साथ कुफर करूं अल्लाह ताला, तूने कहा नहीं लगाना, नहीं लगाऊंगी मैं। घर में नमाज की ओढ़नियों में भरे हुए रहते हैं, भरे हुए, उंडल लो पूरा बोतल उंडल लो। अब मेरे सोफों पे डालती हूँ मैं, पर्दों पे डालती हूँ, पूरे घर में खुशबू रहती है, मेरे में नहीं रहेगी। घर में है तो खुशबू में रहो, बाहर आते हुए कपड़े बदल के दूसरे पहन के आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वरना अत्तर नहीं आएगा, जन्नत से अत्तर नहीं आएगा। गैर मर्द सूंघते रहेंगे तो अत्तर नहीं आएगा, गैर मर्दों के सामने सज सवर के जाएंगे अत्तर नहीं आएगा। कफन और अत्तर आएगा जन्नत से, और नेक रूह को लेके जाएंगे आसमान पे, खोलेंगे आसमान के दरवाजे, मरहबा अहलन व सहलन, वेलकम करेंगे, फरिश्ते बुलाएंगे, वो कौन सी रूह आ गई, कितनी खुशबू है, कौन सी रूह आ गई, सब पूछेंगे आपस में फरिश्ते। दूसरे आसमान पे जाएंगे, तीसरे आसमान पे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें आसमान पे जाएंगे, अल्लाह ताला के सामने खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला बोलेंगे इसको इल्लीन में जमा कर दो, जन्नत की रूहों में जमा कर दो। अल्लाह ताला के साथ तब उसके बाद उसकी रूह लौटाई जाएगी, खबर में लौटाई जाएगी, उठाएंगे फरिश्ते उसको, उठाएंगे फरिश्ते, बिठाएंगे, 3 सवाल जवाब आसानी से वो देगा कि जिंदगी वैसे ही किया है, जिंदगी किया है तो बोलेंगे वैसे ही। अब मुझे आदत है किसी बात की गाली देने की, कई मर्दों को कुछ बात करते हैं, क्या गाली देते हैं बोलो आप, कई मर्द है ना, बोलो, मैं बोलती हूँ, औरतों का भी बताती हूँ एग्जाम्पल से, तेरी माँ की, कुछ भी बोलो, अच्छी बात भी करने, तेरी, बाद में माँ नहीं, अच्छी बात तेरी होते हो जाते, नहीं तो तेरी माँ की। हम औरतें क्या, बेवर सी जिंदगी है, बेवर सी जिंदगी है या ना? आप नहीं बोल रहे हैं, चलो मैं खत्म कर देती हूँ, हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना? ये बेवर सी जिंदगी है। अब कल अल्लाह ताला उठाएगा खबर में, बेवर सी जिंदगी कहाँ गए गती, मर्द को उठाएंगे खबर में, तेरी माँ की बोलती, जो आदत है वही आदत होगी, अपनी आदत को, जबान को जिक्र में रखो, कुछ भी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ लगाते ही ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई पीछे से आए ला इलाहा इल्लल्लाह, तब जाके आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो जन्नत में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। जन्नत में उठते ही क्या बोलेंगे, गाने वाला उठेगा तो गाना गाते हुआ उठेगा, नाचने वाला नाचता हुआ उठेगा। हाँ, हक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आप आदत अतवार को बदलो, जिक्र करो, अभी भी खामोशी से बैठे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सवाल जवाब होने के बाद तुझे कैसे मालूम, कैसे 3 सवाल जवाब दिया? नहीं, कुरान पढ़ा था मैं, कुरान में था ये, मैंने तस्लीम कर लिया, उस तरीके से जिंदगी। चौथा सवाल कुरान में था। अच्छा तू बहुत थक गया ना, ये पॉइंट के लिए मेरा इंतजार है, ये पॉइंट के लिए मेरा इंतजार अब नहीं है, मरने के बाद का भी इंतजार है कि क्यों मेरे लिए सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे 3 घंटे, लोग कहते तेरा भेजा खराब हो जाएगा, तू क्या मेंटल हॉस्पिटल को चले जाएंगे, मुझे क्या क्या बोले थे, मेंटल हॉस्पिटल चले जाओगे, तुम साइकी हो जाओगे, क्या क्या हो जाओगे। अब इतना इल्म कहाँ से आ रहा है, साइकी के पास से, पागल बोलते हैं कुरान में, पागल जानते हैं नहीं। अल्लाह की खातिर जियो, अल्लाह की खातिर अगर इबादत में है तो कम वक्त में अल्लाह से दुआ करो, ये वक्त में मेरी नींद पूरी कर दे अल्लाह ताला। पल भर में तूने आसमानों का सैर कराया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चंद घंटों में हमारी नींद मुकम्मल कर दे, क्योंकि वक्त दीन के कामों में वक्त चाहिए अल्लाह, तो आसानी कर दी अल्लाह ताला ने। तो कहते फरिश्ते आजा, आ बहुत मेहनत कर लिया, आजा। खिड़की खोल के दिखाते हैं जहन्नुम की, देखिए यहाँ जाने वाला था तू, खिड़की दिखा के कहते हैं यहाँ जाने वाला था, अल्लाह ने बचा लिया। फिर जन्नत की खिड़की खोल के दिखाते, बोलो जल्दी बोलो, अल्लाह को क़यामत करने के लिए जल्दी जल्दी क़यामत कर दे, ये तोहफे अल्लाह जो रखा है मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। इससे पहले, मरने से पहले बदकार रूह कहती है कहाँ ले जा रहा है, खबर में जनाजे में कौन डाल दिए, हाय हाय कहाँ ले जा रहे हो, रोको
روکو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اچھی روح کہتی ہے اے جلدی چلو نا، دھیرے کیوں چل رہے ہو، جلدی چلو، رب سے ملاقات ہے، جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو۔ یہ دو روح کے دو طریقے ہوں گے۔ پھر خبر کے اندر بچھونا لایا جائے گا۔ میں کہتی ہوں ساری زندگی کام کرتے کرتے میں تھکی رہی ہوں گی، جب خبر میں آؤں گی یا اللہ مجھے فرشتے بچھونا ڈال کے سلا دیں، جب میرا وقت آئے، اب مجھے مہلت دے دے، ہم سب کو مہلت دے دے، دین کے کام کروا لے، ہم سے راضی ہو جا، سب کو اچھے کروا لے، سب تک جو میرے پاس دین ہے ان کو پہنچا دوں۔ سب کے پاس دین نہیں ہونے کی وجہ سے ہم غلطی کریں، کیوں مجھے دل میں آیا یہ عرب میں ہم غلط کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہم عربی نہیں جانتے۔ رات دن کی میں نے عربی جاننے کے لیے، رات دن میں نے کوشش کی قرآن سمجھانے کے لیے، پوری زندگی کے راتوں بیٹھی رہی، دن مہینے کرتی رہی۔ الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی، آداب تک پہنچ گیا یہ علم۔ سلا کر بولیں گے جنت کا اوڑھنا اوڑھ لے، جنت کا اوڑھنا اوڑھ لے۔ میں کبھی کبھار دیکھتی ہوں عورتوں کو مزے سے سو رہے ہیں، فوٹوز مالز میں جب جاتے ہیں سودا لانے کے لیے، دیکھتی ہوں تو اللہ آخرت میں سلاؤ ہمیں، ایسا آخرت میں سلاؤ، نرم نرم بستروں پہ، جنت کے بستروں پہ آپ سلاؤ اللہ تعالیٰ۔ اب دنیا میں نہیں سونا، دنیا میں ایسا نہیں سونا، دنیا میں ایسا نہیں سونا، غفلت کی نہیں سونا، غفلت میں نہیں رہنا، غفلت سے نکلنا ہے ہمیں۔ 3-4 گھنٹے سو گئی تو کام کیا ہوگا دین کا؟ قرآن کیا پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھ کے ٹائم ٹیبل رکھ کے سویا کرو، ٹائم سے اٹھا کرو۔ اتنی زندگی ہے، اس میں آدھی رات آدھی زندگی دن، آدھی رات آدھا دن، اوڑھنا اڑائیں گے جنت کا، بولیں گے سو جا دلہن کی طرح، تو سو جا۔ دلہن کو خوف ہی نہیں ہے، یاد ہے نا، سارے دلہنے بنے ہوئے ہیں، دلہن کو کوئی خوف تھا؟ کوئی آ کے اٹھاتا؟ کوئی اپنا ہی اٹھاتا تھا۔ دلہن کے جیسا قیامت تک سو۔ یہ سونے کے لیے میں ساری زندگی کام کرتی ہوں ان ہاتھوں سے، کہتی ہوں کبھی تو ہو مجھے کوئی بچھائے، کوئی سلائے، کوئی کھلائے، کوئی پکائے۔ میں سہیلیوں کو کہتی ہوں مریم نا اللہ تعالیٰ چاہیں انشاءاللہ، بولیں گے میں نہیں بولتی، اللہ تعالیٰ ضرور دیتی، میں مانگا اپنے رب سے، میں نہیں بولتی، اللہ دینے کو نہیں بولنا نا، اللہ دیں گے نا ضرور۔ جنت جب اللہ تعالیٰ دیں گے، ہم انشاءاللہ جب رہیں گے، ہم جب انشاءاللہ رہیں گے، کھانا پکانے کا نہیں ہے نہیں؟ ہاں الحمدللہ جی، جان چھوٹی ہم باتیں کرتے ہیں، سہیلیاں کیسے باتیں کرتے ہیں پتہ ہے؟ میری چھوٹی بہنیں ہوں، یعنی کہ فرینڈ، علم جاننے والوں میں، کھانا پکانے کا نہیں، کون پکاتے کھانا؟ آپ کو معلوم ہے؟ فرشتے کھانا پکاتے ہیں۔ اللہ نے کس کو نوکر رکھ رہا ہے وہاں پہ، کس کو راج کرا رہا ہے، ایمان کتنا ہے دیکھ لو۔ فرشتے کھانا پکاتے ہیں، طوبہ جھاڑ سے کپڑے لا کے سلتے ہیں۔ ذرا رو لیے نا، ذرا ہنس لو، اوکے؟ ذرا دو بھی چیزیں ہیں نا، دو بھی ہمارے اسلام میں الحمدللہ۔ طوبہ جھاڑ سے کپڑے لا کے سلتے ہیں، 70 جوڑے لگے، کتنے پہنتے نہیں معلوم۔ بولی اللہ مجھے کپڑے بہت پسند، بڑے اچھے کپڑے، وہاں پہ ایسی اوڑھنیاں اچھے ہوتے ہیں نا، ساری دنیا کی پوری دولت ڈالو تو اوڑھنی کا قیمت نہیں ادا ہوگی۔ وہ اتنی عظیم اوڑھنی اڑائیں گے، کس کو؟ حیا والی عورت کو سب سے پہلے وہ اوڑھنی اڑایا جائے گا۔ اوڑھنی اوڑھ لی، وہ گانے گاتے تھے ہم لوگ ایک زمانہ، اللہ معاف کر دے۔ اب اوڑھنی وہ اوڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ اڑائے گا، سمجھے؟ یہ دین ہے، یہ حقیقت ہے، یہ جانو۔ روز رات کو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، آپ سب کو اللہ کی قسم دیتی ہوں، اور سونا نہیں جب تک سورہ ملک، سورہ سجدہ نہیں پڑھتے۔ سجدہ الف لام میم، سجدہ میں 2 ہوتا ہے، حامیم الف لام میم ہوتا ہے۔ میں اطیع اللہ اطیع رسول میں بھیجتی ہوں، میں آپ کو انشاءاللہ ہو سکا تو یہ بنا کے بھیج دیتی ہوں، PDF بنا کے بھیج دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ دونوں کا انشاءاللہ، ذرا ٹائم دو مجھے، ٹھیک ہے؟ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک پڑھ کے مانا جانو۔ فرشتے کیا اس میں بولتے ہیں، جہنمی سے کیا بات کرتے ہیں؟ کیوں نہیں آیا تیرے پاس ڈرانے والا؟ کوئی نہیں آیا تھا، تجھے ڈرایا نہیں تھا، کیوں جا رہا ہے جہنم میں؟ یہ جو باتیں ہوتی ہیں سورہ ملک میں، یہ سب مانا جان لو۔ ایک کام کرتی ہوں انشاءاللہ، آپ سے میں وعدہ نہیں کرتی، زندہ رہی تو اللہ کرائیں گے، نہیں تو اللہ کی مرضی، کہ سورہ ملک میں پورا سورہ ملک ایک بار پڑھ کے پورا مانا کر کے پورے گروپس میں بھیج دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تھوڑے وقت کے بعد سورہ سجدہ پورا پڑھ کے پورا مانا کر کے، یہ 2 چیز میں کر کے آپ لوگوں کو بھیج دیتی ہوں۔ آسانی ہو جائے گی نا؟ تو روز پڑھو گے انشاءاللہ، ضرور پڑھو گے، یا میت کے بعد 40 بار انہوں پڑھے تو ہمیں چلے، چھوڑو، میں کہے کے لیے اتنے گھنٹے بکنا ہے نا؟
काहे के लिए इतनी इबादत करना है, काहे के लिए, मैं मर गई तो 40 पढ़े तो मेरे पास 40 या 40,000 से ज्यादा हो गए हैं, तो पूरे सूरे मुल्क पढ़े तो चले जाती नहीं जन्नत कुमी, बोलो जवाब दियो। पढ़ के अमल करना, पढ़ना ही नहीं है, अमल करना, ठीक है। समझ में आया मौत की हकीकत। मौत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मौत ही मोमिन के लिए शुरुआत जिंदगी है, मोमिन के लिए शुरुआत जिंदगी है, डरेंगे नहीं, खुश रहेंगे जाने के लिए, समझिए। मगर काफर के लिए अजाब है। अल्लाह किसके पर गुस्सा होता है, जो उसके खिलाफ रहते हैं। अल्लाह ताला इंतजार करता है तोहफे देने के लिए, अल्लाह ताला इंतजार करता है जन्नत देने के लिए। क़यामत होने से पहले परिंदे की जोफ में रखकर जन्नतों की सैर कराता है ईमान वालों को। अल्लाह इंतजार तोहफे देने में है, अल्लाह ताला अजाब देने में नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं अजाब नहीं देता मगर उनके आमाल के हिसाब से मैं देता हूँ। अगर वो गुनाह करे हैं तो उस हिसाब से मैं सजा दूंगा, वरना मैं सजा देना पसंद नहीं करता हूँ। तो आप क्या करेंगे अल्लाह ताला को, अब खबर को इतना डरेंगे कि अल्लाह को ही छोड़ देंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, खबर में जाको अजाब उठाना जी, चलो यहाँ जरा जी लेंगे, जरा घूमेंगे, जरा पिकनिक करेंगे, जरा मजे कर लेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छा अच्छा खाना खा लेंगे, अच्छा जी लेंगे, मरे तो सब छोड़ के जाना, चलो जी। नहीं, मरने से पहले अपना हार निकालो शादी का, कम से कम 10 सौरन, 20 सौरन, 40 सौरन। माँ बाप के ऊपर जाता है कितनी इस्तात है उनके हिसाब से हार दिए होंगे ना, किसी के पास तो होगा ना, या किसी के पास एक बारीक चेन होगी ना, कुछ तो होगा ना, नहीं है नाक में तारा तो होगा ना, शादी का कुछ तो होगा ना हमारे पास, है ना। अल्लाह की राह में हमें मरने से पहले जितनी आज हमें मोहलत मिली है, आज कई मस्जिदों को देखो जहाँ पे तामीर चल रही है, या कहीं कहीं बॉडी खुदवा रहे हैं, बोरवेल कुछ करवा रहे हैं, देखो खर्च करके तैयार रहो, अपना पैसा खर्च करके तैयारी करके रखो। हम बंगड़ियां यहाँ तक पहनते हैं, ये कट्टा निकाल के आखिरत के लिए रख दो, ये कट्टा पहन लो आप। 2 कट्टे हैं बंगड़ियों के, 2 सेट्स हैं, दोनों सेट नहीं रख लो अपने लिए, 2 सेट में से एक आखिरत के लिए कर दो। जब मैंने घर खरीदा था यहाँ पे, किसी को सिखाई थी, किसी ने मुझे सिखाया था, दुनिया में घर खरीदा है उतना पैसा आखिरत के लिए भी खरीदो। जन्नत खरीदो, जन्नत खरीदो, जन्नत लो आप, खरीदो, यानी कि इतनी जमीन खरीदेंगे आपको जन्नत कितनी बड़ी दी जाएगी। जन्नत ऐसे ही नहीं मिलती, सोना पूरा रख के रखो अंदर, मरने के बाद दूसरे ले लेंगे, अजर नहीं मिलेगा, ठीक है। मैयत जब तक नहीं निकलेगी, रूह को आज़ाद नहीं करेंगे अल्लाह ताला, जब तक उसका खर्जा नहीं अदा होता। मेरे और आपके माँ बाप कौन कितने क्या हैं, सब दिए, मेरे तो सकी थे, आपके भी सकी थे, फिर भी हमारी दिल की तसल्ली को हम भी अपना पैसा थोड़ा करेंगे। किसी को क्या करें, धोखा दें, क्या करें नहीं मालूम, अल्लाह हमारा भी खर्जा तो अदा कर ले। अच्छा, आप सबका हकीका हो चुका है, कब हुआ? अभी अभी आपने किए, वेरी गुड। बाकी आपकी माओ ने किया, आपने किया, वेरी नाइस। हाँ, बेटे करे, रिसेंट करे आप सब, वेरी नाइस। आप अभी अभी करे हैं, क्योंकि हमारे माएँ शादियों में बकरे डाल देते थे, शादियों में हकीके के बकरे डाल देते, गरीब की बच्ची की शादी में डाल देते थे। ये तरीका नहीं है। आप अपने पास से पैसे जमा करो, अपना अपना हकीका कर लो। एक बकरा है ना, 2 बकरे नहीं है ना, लड़कों को 2 बकरे हैं, हमारे लिए 1 बकरा है ना। जरा गोश्त खा सकते या नहीं खा सकते? खा सकते हैं, खा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, सब कर सकते हैं। मतलब 90% फ्रिज में नहीं रख लेना, थोड़ा खा के थोड़ा कुछ करके बाकी का तकसीम करो, ये ठीक है। और कुछ सवाल है? बच्चे आ जाओ, कर डालो, बेहतर है, कर्ज अदा हो जाएगा, कर्ज अदा कर डालो। कर्ज, माँ बाप का कर्ज जो भी है, रोजे छोड़ के मर गए हैं माँ बाप हमारे, उनके रोजे रखना है। क्या हम रह रहे हैं? नहीं रहते। खुद के रोजे आपने खत्म किए, अपना कर्जा नहीं करे। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए एक बुक मिलती है डायरी की, ले लो, लेके आओ। आपकी माहवारी कब हुई थी?
آپ کب بڑے ہو جانے دو، 30 40 50 سال کوئی بات نہیں ہے، آپ کوشش کرتے رہنا. میں کہہ رہی ہوں ہم سب نے ختم کیے یہ، میرے اسٹوڈنٹس پورے نے مل کے سب نے تیاری کیے، ڈائری میں لکھے 1 سال 6 روزے، 1+1+1+1. میں 2000 کا لیتی ہوں. میں 2000 میں ماہواری ہوئی، سمجھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 2000 میں ماہواری ہوئی. 2000 میں ڈیٹ لکھ کے لکھوں گی 1+1+1+1. 6 دن چھوٹے ہیں تو 6 دن لکھ لوں گی. اوکے 2001 میں. اوکے پھر میں لکھوں گی 1+1+1 ایسے لکھ کے لمبا ڈیری لکھ کے رکھ دو. ایک روزہ رکھے ایک کو مارک کر دو، پیر کو روزہ رہے ایک مارک کر دو، جمعرات کو رہے مارک کر دو، حج کے روزے 9 دن کے آتے ہیں رہے وہ 9 روزے مارک کر دو. کوئی بھی روزے رہ رہے ہیں رکھ دو، رمضان کے نہیں، رمضان کے نہیں، رمضان کے نہیں. ہاں محرم کا بھی رہتے نہیں، وہ بھی مارک کر لو. کون سے روزے رکھ رہی پورا لوٹ لو، پورے قرضہ ادا کر دو، ورنہ قیامت میں پکڑ بہت بڑی. وہ گئے، وہ تمہارے گئے، وہ الگ حساب میں گئے. ہاں نیت کر کے، صدقے کی نیت تو صدقے کی نیت ہے. نیت جس نیت سے کرو گے، صحت کے لیے صدقہ دو گے، صحت کے لیے، آپ پیسوں کے لیے، رزق کی ترقی کے لیے دو گے، رزق کی ترقی. نیت انما اعمال بالنیات ہے، نیت کے اوپر دار و مدار چلتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ختم کر دوں میں؟ جی آخر دعوانا ہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم انی اعوذ بک عذاب القبر، عذاب جہنم، اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اعوذ بک من فتنة المحیا والممات. والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ نمبرز لے لو.